Hey everyone, welcome back to Love Food and Fitness. I'm your host Archana Kumar, and today, before I tell you who the guest is, let me take you to a small imagination round. Somewhere in Rajasthan right now, a girl is dancing. She's dancing, maybe it's a wedding, maybe it's some function, or she's just happy that she's dancing. But what she doesn't know that this dance is ancient. Not only ancient, it was dance performed by the queens. It was under the veil. It was for a goddess and never for a crowd. And she definitely doesn't know that the reason that she's dancing right now is because of someone written right next to me. She's Jyoti Nethani Tomar, a national award winner, a choreographer, a keeper of a queen's promise. I'd really like to say that. She started dancing at the age of 4, if I'm not wrong. She was trained in Kathak. Then she became a compere, an actress, and a fashion designer. She was a lead lady in the first Indian play ever performed on Broadway. And then in 1988, her sister made an introduction that changed everything. She spent the next 30 years learning a dance form which most of the world had actually forgotten about, and that too from a queen. And then one day, Sanjay Leela Bansali called, and 200 million people discovered Ghumar. Today, the woman is here. And therefore, naming the episode today as The Woman Behind the Spin. Let's spin with her today. Thank you so much. These are such kind words, Archana. But I would, to be very frank, I would say that I am the extension of the woman behind the twirls, because my guru, she was from Kishangarh, Rajasthan. She was the princess of Kishangarh. And she decided back in 85, 84, 1985, 84, that people don't know what the Ghumar dance form is, the authentic form is all about. Everybody was dancing differently. And ये ट्रेडिशनली राजस्थान में राजपूत महिलाओं का डांस है. हमारी संस्कृति इतनी रिच है कि every caste and clan has different kind of dance styles. Yeah. So which people don't understand, they just do the dance form whatever they see. और अब तो ये रील का जमाना आ गया, तो अब तो और भी ज्यादा फॉर्म्स बिगड़ ही रहे, सुधर नहीं रहे, unfortunately. So she decided that people must know that how we danced, because she used to say that ये तो हमने बचपन से इसी डांस को किया, इसी को जाना, और ये हमारा डांस फॉर्म है. It should not be performed in a distorted way. तो उन्होंने अकेडमी बनाई बैक इन 1986. इस साल हमको 40 साल हो गए हैं अकेडमी को. एंड शी सेड कि whoever will come to me, I will teach them Ghumar and Nach. These are two different styles. And I want the world to know how the princesses and queens danced. So back in 88 I joined her. And बस फिर उन्हीं के साथ हो गया. तो शी इज द, मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने साहस नहीं, उन्होंने दुस्साहस किया कि उन्होंने ये अकेडमी बनाई. बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका बहुत लोगों ने लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, स्पेशली राजघरानों में, कि अब रानी महारानियां जो है वो डांस गाना सिखाएंगी. तो शी सेड कि मैं कहीं परफॉर्म करने नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी मर्यादाओं को जानती हूँ. मैं सिर्फ इन लड़कियों को जो जानना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, मैं उनको सिखाऊंगी, अब वो इस चीज को आगे लेकर के लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे. सो वी आर रियली ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल दैट शी डिड दिस. अदरवाइज हम भी आड़े टेढ़े ही नाच रहे होते, और क्या. नहीं, पर ये तो हम आगे चलेंगे, पहले हम पीछे जाते हैं. बिल्कुल. When you were a 4-year-old girl, Yeah. how was your love with dance at that point of time? Because you learned Kathak also at that Yes, stage. yes. Actually, I have a big family, and I'm really very lucky कि ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने हमको, जिसको कहते हैं ना, सब चीजें सीखने के लिए, करने के लिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो. पढ़ाई इज एक एस्पेक्ट, बट अदरवाइज दे वर रियली फोकसिंग ऑन आवर कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके लिए कहा जाए. सो वी हैड द फ्रीडम टू चूज व्हाट वी वांट टू डू. एंड हमारी जो स्कूल का एजुकेशन था, my father was a professor, head of the Hindi department in St. Xavier's College, Mumbai. And he's the one who brought Hindi as a subject of post-graduation in Maharashtra University. So you also graduated in Hindi Yes, I have also. Who by default हुआ है, I was never interested in studies. So my eldest sister, she was learning Kathak. She had learned Kathak for 14 years. तो गुरुजी आते थे घर में सिखाने के लिए. तो हम छोटे छोटे थे, तो I would go and stand next to her and dance as well.
So when my father saw that I am interested in, even my the immediate next जो younger sister थी, तो हम लोगों के लिए बड़ी एक पतली सी ऐसी डोरी में पिताजी ने छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए थे, तो बांध के आई यूज्ड टू प्रैक्टिस विद दीदी, आई मीन वॉट एवर शी इज डांसिंग उसका इंस्टेंट जेरोक्स निकालने की कोशिश होती थी. सो दैट इज हाउ माई इंट्रोडक्शन टू डांस एंड लर्निंग डांसिंग स्टार्टेड. सो इट केप्ट हैपनिंग. फिर स्कूल में ड्रामा हो रहा है, डांस बैलेज हो रहे हैं. So I was never interested in singing or acting. I was always into dancing. So पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे अगर कोई कहे कि घंटों पढ़ लो तो वो तो काम नहीं होता था. पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट रहता था कि कुछ डांस कर लें, कुछ गेम खेल लें, किसी की मार कुटाई करनी हो तो वो भी करने के लिए पहुंच जाए. तो this is how the love for everything. And since it was a big family, we are 9 sisters and 1 brother, so all of us, we being together, हम लोगों को कभी दोस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ी, to be तो very ये frank. अपने आप में आमी बन गई. Absolutely. और जब छुट्टियां होती थी तो माँ भी हमारे साथ बैठ करके गेम्स खेलना है कुछ भी. और the environment of our house was very rich. Like my father, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, एंड देन उनको वहां पर एक फादर आए हुए थे जो जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा रहे थे, एंड ही आस्क्ड माय फादर दैट व्हाई डोंट यू कम टू मुंबई एंड स्टार्ट द हिंदी डिपार्टमेंट इन सेंट जेवियर्स कॉलेज. दैट इज हाउ माय फादर केम टू मुंबई. And once he was here, he was very particular because at that point of time, I'm from Uttarakhand. तब हम लोग उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा होते थे, till then अलग नहीं हुए थे. So वहां पर majority टैक्सी चलाने वाले उत्तराखंड के लोग, होटल्स में शेफ उत्तराखंड के लोग. So it was like अच्छा हाँ यूपी के लोग हैं, यूपी के लोग हैं. एंड कभी हम किसी को कहते भी थे, कोई पूछता कहाँ से हो तो हम कहते थे कि हम गढ़वाल से आए. अच्छा भैया हो. सो माई पेरेंट्स वर वेरी पर्टिकुलर कि अपनी रूट्स आपको पता होनी चाहिए. जैसे मेरा सरनेम है नथानी, तो पीपल ऑलवेज थॉट दैट वी आर सिंधीज. सो अच्छा सिंधी हो, सो वी वुड सो वी वुड से कि नहीं, सिंधीज आर नथानी, वी आर नैथानी, NAITHANI, सो वी हैव बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस. फिर कोई कहता अच्छा भैया, तो वी यूज्ड टू से नहीं, हम प्लेन्स से नहीं है, हम हिल्स से हैं, दैट इज गढ़वाल. बद्रीनाथ केदारनाथ जानते हो, किसी को नहीं पता है तो हरिद्वार जानते हो, मसूरी देहरादून अधिकतर लोगों को पता ही होता है. सो बचपन से हम सब लोगों का रहा है कि टेलिंग पीपल वेयर वी बिलोंग टू, वेयर वी कम फ्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे ब्लैंकेट रूल आप नहीं लगा सकते सब चीजों पे. सो अपनी आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो सिखाना, प्लस वहां के प्रवासी गढ़वालियों के लिए पिताजी ने बहुत काम किया, वहां पे संस्था बनाई. फिर जो कल्चरल रूट जो होनी चाहिए, अब बंबई आ गए तो उसके बाद तो अपना जो गढ़वाल का गाना वगैरह सब छूट गया. तो पिताजी वुड कॉल आर्टिस्ट्स ये इसके लिए, कल्चरल इवेंट्स के लिए वहां से फोक आर्टिस्ट्स को बुलाते थे. तो बचपन से हमने ये देखा था कि जब वो आर्टिस्ट आते थे तो दे आर सिंगिंग, और कोई डांस गाया तो पिताजी वुड जस्ट कमरा बंद करके उनके जो गीत उन्होंने गाए हैं वो लिख भी लेते थे और उसको रिकॉर्ड भी करते थे. तो in a way, indirectly, we learned preservation of culture also from my parents. They were very और इतने respectfully folk artists को वो लोग बुलाते थे. घर में खाना वाना सब हो रहा है, तमीज से, और जब उनका शो वगैरह करवाया जाता, people used to love that. होता है ना, आप प्रवासी अपने उस समय तो गढ़वाल से बम्बई आना was like going abroad. बिल्कुल, बिल्कुल. So वैसे में अगर आपके कल्चर को आपको बम्बई में देखने के लिए मिल रहा है, वो टिपिकल वही हुड़ुक लेकर के गा रहे हैं, पंडौ सरो जो डांस होता है वो सब हो रहा है, तो people used to love that. And then my father used to feel very happy that he has done a bit of his work of keeping the roots alive in the प्रवासी उत्तराखंडी. So वो चीज बचपन वैसे ही इतनी सब चीजों में रहा. And parents were like that, पढ़ाई is important, but ये कल्चरल जो चीजें हैं वो भी बहुत जरूरी है. सो इट वाज अ वेरी फन फिल्ड बचपन. इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़े, बिकॉज माय फादर वाज वेरी पर्टिकुलर कि अपनी भाषा में पढ़ाई करो. एक बार 10th में के बाद जब 11th में पहुंच जाओगे, देन यू विल हैव इनफ good memories of your childhood where you have done so many things. You have not spent your childhood learning a new language just for the sake of education. Including the spellings, the meaning. You have learned your education, you have done your education in the language which you were comfortable with. So do that, and you enjoyed your childhood also. So 11th onwards, 1 year first, the very first year used to be little tough, but all of us, we did the same thing. 10th tak Hindi medium, uske baad 11th onwards
जेवियर्स में वैसे जिसको हमारे टाइम में ऐसे ही होता था, 2 महीने की छुट्टियां वर मोर अबाउट लर्निंग एंड आर्ट एंड यस क्राफ्ट. यस 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 अब थोड़ा एब्सोल्युटली सा अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए मोर अबाउट एक्टिविटीज हैं, बट मोर एजुकेशन है, मतलब ना, पढ़ाई की तरफ ज्यादा है रादर देन लर्निंग अदर एक्स्ट्रा करिकुलर, वो यस थोड़ा कम अब आई क्या हो फील. गया है ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस व्हिच वी हैव या सो उससे फर्क आ जाता है सो एक्स्ट्रा विल ऑलवेज रिमेन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ओनली ट्रू. so but we were fortunate enough that is what I just thank my stars with that fortunate enough that उन्होंने हमको इसको as a extra नहीं but a part of our life दिया so अच्छा, गोइंग बैक टू 20s ना, हम थोड़े yes से आगे बढ़ गए रादर. absolutely सो यू हैव, मतलब व्हेन पीपल स्टार्ट नैरिंग डाउन कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को इंजीनियर बनना है, यू हैड डिफरेंट स्ट्रीम्स. यू वर yes एक्टिंग आल्सो, यू कोरियोग्राफी भी कर रहे थे, और क्या था, स्टेज में भी थे आप. मूवी की बात तो बाद में करेंगे, बट स्टेज में भी परफॉर्म करा था आपने. सो हाउ so many lines were like you were able to do and you decided to do also? actually all of that happened by default मुझे बनना था पुलिस I wanted to join a police force Oh really? and वैसे वहां पे बहुत my अच्छा डंडा idol दे के रखते yes हैं yes आपको. absolutely and my idol was Kiran Bedi like Oh yes, oh वो yes सबकी I आइडल want थी एक्चुअली, yes शी वाज yes एवरी yes गर्ल्स आइडल. एंड बचपन से बस यही था कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है एंड माँ पिताजी ने कभी भी नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते उन्होंने कहा ठीक है तुमको जो बनना है लेट्स सी ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट करो एंड देन वी विल सी सो व्हेन आई वाज इन क्लास 11th ये जो स्कूल कॉलेजेस में होता है डांस वगैरह के लिए सो देयर वाज वन कोरियोग्राफर शी हैड कम एंड शी हैड कोरियोग्राफ्ड हुडो इट्स अ डांस फॉर्म ऑफ गुजरात ओके. सो उनका नाम वसुंधरा मेहता तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि मेरा एक कमर्शियल ग्रुप है हम लोग नवरात्रि के 9 दिन बॉम्बे में गरबे प्रेजेंट करते हैं तो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट सो आई वाज लाइक हाँ मम्मी पापा से माँ पिताजी से पूछ के बताती हूँ डांस में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था आता था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था सो माँ पिताजी ने कहा नहीं फर्स्ट यू फिनिश योर ग्रेजुएशन उसके बाद देखी जाएगी सो आई वेंट एंड टोल्ड हर सो शी सेड अच्छा ठीक है अपना एड्रेस दे दो या फोन नंबर दे दो मुझे एंड मैं तुमको 4 साल बाद कांटेक्ट करती हूँ तो मैंने अपना एड्रेस वगैरह फोन नंबर एड्रेस था जो वो दे दिया था फोन तो था नहीं घर में तब हमारे तो उसके बाद तो मेरा ये था कि मुझे तो पुलिस बनना है जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ सो पिताजी ने बैठ के समझाया कि देखो बेटा you want to be a police officer because that was the time that when women had started just joining the force it was not as comfortable and No. elaborated जो अब है अभी challenges अभी भी हैं, challenges फिर तो भी there are lot of definitely women हैं yes out there now. so he said कि see I'll tell you something very frankly समझना सुनना ये तुम्हारे ऊपर है कि I know the kind of upbringing you have जैसे संस्कार है तुम एक करप्ट ऑफिसर तो बनोगी नहीं मैं जानता हूं कि तुम किस तरीके की ईमानदार ऑफिसर सब कुछ बनोगी लेकिन यू हैव अ लॉट ऑफ वीकनेसेस लाइक यू हैव 8 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर सो जिसको तुमसे गलत काम करवाना होगा या अपना मतलब निकलवाना होगा यू बीइंग इन अ पोजीशन बहुत इजीली वो तुम्हारा आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं सो in spite of being in a good position you will always feel that because of you your brother sister and family is suffering so ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है दोनों चीजें हैं. plus the conditions at this point of time are very different तुम one of my cousin was in police force by he had joined by then कि तुम उनसे भी बात कर लो ट्रेनिंग क्या होती कैसे होती है and what are the circumstances and what is the condition for females out there सो मैंने उनसे भी बात की एंड पिताजी की कही बात वो भी मैं समझी है बहुत सोचने के बाद देन आई जस्ट थॉट कि नहीं इट वाज गोइंग टू बी लाइक रियली वेरी टफ Tough for you. वो उस वक्त आई वाज जस्ट लाइक व्हाट 20 इयर्स ओल्ड सो सोचा समझा एंड देन आई जस्ट टुक बिकॉज माय फादर सेड इफ यू स्टिल वांट टू जॉइन फाइन एंड फॉर एवरीथिंग माय पेरेंट्स आर लाइक दिस कि यू टेक योर ओन डिसीजन वी विल ऑलवेज share it with us we will always tell you pros and cons of it if you want to still go ahead with it in spite of we saying ki nahi it is not correct it is absolutely fine if you succeed we are there to celebrate it with you if you fail we are there standing next to you supporting you so itna freedom jo tha hum logo ko to be ourselves in spite of our relatives coming and saying ki aap kitni ladkiyan hain 10वीं हो गई शादी करवा दो my father was like nahi they are not just a girl they are a human being and they must become an individual first before getting married marriage is not the ultimate in life Yes. they have to get married but before that they must become an individual capable enough to take care of themselves
So इस चीज के लिए they always paid a lot of attention towards that. And फिर जब मैंने decide किया कि okay fine I will not be a police officer, लेकिन अब क्या? तो पिताजी ने कहा एमए कर लो, टीचिंग में चले जाओ। ना टीचिंग में मुझे नहीं फिर पढ़ाई फिर से पढ़ाई, मतलब अभी बड़ी मुश्किल से तो ग्रेजुएशन खत्म हुआ है and सपने थे कि अब डंडे पीटूंगी लोगों को एंड ऑल दैट, अब फिर पढ़ाई एमए करनी है एंड दैट आई वाज लाइक सोचना है मुझे। एंड देन आई गेट अ कॉल एंड दैट वाज वसुंधरा मेहता एंड शी सेड आई एम श्योर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन माय she saved ग्रुप। your address for so She many had years. just think 4 years she कौन waited and she संभालता है? had, yeah. तो then I went and told my parents, उन्होंने कहा हाँ ग्रेजुएशन हो गया, if you want to explore, if you are interested in dancing, go try it. So I said हाँ क्यों नहीं, जाएंगे करेंगे। So जा करके मैंने डांस करना शुरू किया and उसी के थ्रू I met Sanjay for the first time because he was choreographing in another group called Tarang. I was in Varnam. And that is how I met Sanjay Leela Bhansali and I was introduced and we are friends since 1987. And उसी group के through in 88 नहीं 88 में तो I met my Rajmata साहब through my sister. In 1990 उसी group के through my I met Firoz Abbas Khan. Okay, He was I doing was this going to play. ask. Yes, Yeah. he was doing the play and they wanted dancers. So I was like हाँ डांस तो कर ही रहे हैं तो चलो जैज स्टाइल भी सीख लेते हैं, इंडियन तो आता है, जैज स्टाइल It करने was a jazz जाएंगे। type of dance. Yes. And actually, Farah Khan was supposed to choreograph the play. It was a Oh, musical play based on adaptation था West Side Story का. okay. So, but then she got Jo Jeeta Wo Sikandar. So then Arshad Warsi was the choreographer. So went for the audition and now of course dance में अच्छा कर लेती थी, so got selected. Then after 2 days, Firoz bhai came and he said कि acting कर लेती हो? I said acting तो मुझे नहीं आती है। तो he said कि अच्छा तुम घर आओ। तो घर में उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी and he gave me a script. It was in Gujarati. He said, "Can you read Gujarati?" I said, "हाँ, I can read Gujarati, हाँ. write नहीं." But वो सब free tuition मिला है अर्चना बचपन से। Neighbors were Rajasthani and Gujarati, so भाषाएं आ गई। मराठी हमने सीखी स्कूल में, तो हिंदी, अच्छा, because गढ़वाली, हाँ. इंग्लिश, गुजराती, मराठी, राजस्थानी भी बोल लेती हूँ। And since after my marriage I stayed in Calcutta, so I understand Bengali, Bengali टूटी also. फूटी बोल भी लेती हूँ। So then he said, "Ki read these lines," and I read those. I said, "कैसे पढ़ना है?" So he said, "जैसा पढ़ सकती हो तुम पढ़ो, समझो और बोलो अपने हिसाब से." And मैंने पढ़ा जैसे बोल सकती थी. Acting was not my forte. So he said, "हाँ, ऐसे तो करना है." And that's how from dancer, I immediately became second lead. Renuka Shahane was first lead in that. And then after 2 shows, he changed the complete cast and everything. Then I became the first lead. Oh, But उसमें गाने गाने थे and I was like absolute non-singer. तो फिर गुजराती में गाने भी गाए. yes. So फिर वो लाइव सिंगिंग होती थी। हाँ, उस तो टाइम पे तो वैसा नहीं अभी होता तो था. बॉडी माइक आ गए, उस वक्त कॉर्डलेस रहते थे, तो वो सेट्स में ना जगह जगह पे लगाए हुए रहते थे। तो जब नंबर आ रहा है तो वो माइनस ट्रैक बजता था, वी वुड पिक अप माइक्रोफोन एंड सिंग। सो फिर उसकी ट्रेनिंग हुई गानों की। तो but it was fun, we were like Oh, nice. 37 38 odd people on stage singing, dancing, and it was a beautiful play. And उसको देख करके फिर फिल्म बनी थी जोश, शाहरुख खान की। शाहरुख खान, हाँ, ऐश्वर्या राय हाँ, हाँ, की हाँ, हाँ, वो हाँ. बाद में बनी थी। सो वी वर लाइक वो प्ले हमारा फिर गया था ब्रॉडवे स्ट्रीट में हमारा परफॉर्मेंस है, तो उसके बाद आए थे तो हम बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे। बिल्कुल. दूरदर्शन में इंटरव्यू और सब हुआ था, तो वी वर लाइक ओह वाओ, हमने मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। सो इट बिल्कुल वाज है. फन बट वी एंजॉयड दैट। सिंगिंग लाइव वाज टफ, डेफिनेटली एक्टिंग वाज टफर, बट देन फिरोज भाई ट्रेन्ड मी वेल एंड जिसको कहते हैं ना एबीसी के हिसाब से, देन ही यूज्ड टू टेल मी जैसे तुम लोग डांस बैले में करते हो ना, जो है अभिनय ही तो है, वो instead of poetry तुमको प्रोज में करना है ना। he had his own vocabulary to teach me, make me understand how to go about it. हाँ, वैसे इन वे एक्टिंग तो डांस में भी आती है, आती बिकॉज ही वो है, भाव अभिनय और वो सारा अभिनय तो है, वो भी. अभिनय ही हाँ, है। वो अभिनय yes तो है. yes वो so वर्बल है, वो मूवमेंट से आप correct उसको correct एक्सप्रेस correct करते हो. correct correct so that is how it just kept happening by default. So yeah, so I never planned these things, but it happened. So since it was happening, so I just went ahead with the flow. पर इसी के दौरान आई थिंक वो
Kundan Shah had offered you that movie also. Yes, yes. He had come to, there's a award in Gujarati fraternity Okay. play, Oscar awards बोलते हैं उनको. So he अच्छा, had Oscar come, Awards. हाँ, वो गुजराती theatre का है. Okay. So he had, our play was also one of the nominated play. Oh, So wonderful. he was one of the judges. So he had come to see our play and he really liked me, and then he got in touch with me and he said कि हमारी film बन रही है कभी हाँ कभी ना, second lead का है, would you like to do? अब मेरी फिल्म, मेरे परिवार में डांस तो हाँ हो गया, प्ले भी हाँ हो गया, लेकिन फिल्म बैक देन वाज अगेन, इट वाज अ Yeah. डिफरेंट सीन ऑल टुगेदर. It was So never considered a good profession to actually. absolutely, when it is so sad that it is always सारा ठीकरा ना लड़कियों के ही सर पे फूटता है हर जगह में. तो देन आई आस्क्ड माय माँ. सो माँ ने कहा कि देखो मेरी तरफ से तो आई वुड से दैट तुम खुद देखो जिस जगह जा रही हो, जो कर रही हो, मुझे इस क्षेत्र का ज्यादा कुछ पता नहीं है. सो बेस्ट जज यू गो स्पीक टू फिरोज भाई. सो आई स्पोक टू फिरोज अब्बास खान and he was family, he still is family. So when I spoke to him, so he said ki see, if you want to make a career, this is a good opportunity. So I said नहीं, career तो नहीं बनाना है, because I know career नहीं हाँ, बनाना है. मुझे पता था मैं वहाँ आगे नहीं चल. क्या होता है ना, हर जने का एक टेंट्रम होता है, माइंडसेट होता है. मैं हम तोड़फोड़ करने वाली जनता है, मार पटाई कर लेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया कहीं. In spite of Bombay being a very safe place, कभी ना कभी ऐसे कुछ लोग, छेड़ने वाले लोग ऐसे पिटते भी थे मेरे हाथों में. आज भी पीट लेती हूँ But लोगों I think को. women are unsafe everywhere, वैसे तो. एब्सोल्युटली, बट बॉम्बे इज वेरी वेरी सेफ दैट वे. अभी आज भी अगर मुझे रात को 2 बजे, मुझे या मेरे बेटियों को, आई हैव गॉट 2 daughters, अगर इवन इफ दे आर ट्रैवलिंग आउट इन द नाइट एट 2 or 3 AM पे या 4 AM पे अकेले ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है. मैं बस ये बोलती हूँ कि वहां से निकले, मैसेज कर दो. मैं तो सोई हुई रहती हूँ, मैं कोई उठी हुई नहीं रहती हूँ, पर मैं बोल देती हूँ कि मुझे बस एक मैसेज कर दो कि हाँ हम निकल गए हैं. जब घर में पहुंच जाओ तो मैसेज कर दो घर पहुंच गए. So still, when I went and spoke to Firoz Bhai, so he said ki he's a very good, safe and very sensitive director. So if you want to work, go work with him, and it will be a nice atmosphere. I know your family also, so that's a very good environment. You can go and work. So I went and I shot for the film, and But उसके बाद दोबारा movies नहीं, उसके बाद offers तो आए, but by then I had got married. I knew by then I had met my to be husband. So I knew कि नहीं, I could leave everything, but by then the dance had become so much important for me that when I saw this dance for the first time, my sister was doing some वो अपना research कर रही थी NCPA में, नेशनल आर्काइव्स है मुंबई में वहाँ पर, एंड वहीं पे मेरी गुरु भी थी. वो घूमर पे पूरा पेपर उन्होंने लिखा था. She met my sister and she came to, she was looking for a singer because जो अकेडमी में उस वक्त जो गाती थी गाना गौरी बाई, उनकी डेथ हो गई थी. एंड शी वाज द टॉप मोस्ट ऑफ राजस्थान की मरु कोकिला उनको कहा जाता था. So when she heard that my sister she's a classically trained person, so she said, would you sing for my academy? So she said yes. So she said मेरा प्रोग्राम आने वाला है आज रात को. एक DD2 में आता था एक प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस एंड म्यूजिक, रात को आता था 11:30 बजे. So she said you just watch that, and if you think that you are open to sing that kind of songs and all, do meet me. So नंदू दीदी ने, मेरी सिस्टर ने आकर के घर पे बताया. I was very fascinated with the Rajasthan and Rajput women. So and they always have a lot of royalty and lot of grace and everything attached to them. but मेरा attention इसलिए गया था because I was in class 9th जब मैंने एक डांस बैले किया था सेनानी. That was my first introduction to Rajasthan की राजपूत महिलाएं and घूमर. So the story, as the story goes, it is not a story we say, but सत्य सच बात है वो कि बैक इन बहुत पुरानी बात है कि चारुमती वाज क्वीन एंड उनकी शादी होने वाली थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड. तो उनकी शादी हो रही थी, तो जिनसे शादी होने वाली थी, तो औरंगजेब का ये था कि अदरवाइज ही वुड हैव कम एंड ही सेड कि मैं इनसे शादी करूंगा, क्योंकि उन्होंने सारे राजपूत महाराजाओं की फोटो ले ली थी और उस लेडी से औरंगजेब की जब फोटो ली तो कहा कि हाँ मैं ये ले लूंगी, पर उन्होंने खुद ने और अपनी सारी सहेलियों ने उनको जूते से उस पेंटिंग की पिटाई की थी. अब वो जब पेंटिंग फट गई तो कहा कि अब जाकर के उनको दे देना, उनको कहना वो नहीं है मुगल बादशाह, हम लोग मतलब जो राजपूत जो महिलाएं हैं उनका अलग आन बान शान है. तो जब औरंगजेब को पता चलता तो चिट्ठी भेजते हैं, वो कहते हैं कि इनसे तो मैं शादी करूंगा.
आप तैयार रहिए। तो अब वो जो रूपनगढ़ की थी, तो उन्होंने फैमिली ने कहा कि करनी चाहिए तुमको, करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो इतनी छोटी सी स्टेट थी कि वो कहाँ औरंगजेब से लड़ते। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कहूंगी। तो उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारी जिद के पीछे अगर हमने मना किया तो वो यहाँ पर गांव में आकर के लोगों को मारेंगे, मारेंगे। महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, उनको रेप होगा, सब कुछ होगा। तब यही होता तो था। ये हम एज अ राज परिवार, ये हमारा कर्तव्य कि हमको उनकी रक्षा करनी है, तो ये तुम्हारा सेक्रीफाइस है, ये तुमको करना पड़ेगा। बट देन शी सेड कि नहीं। देयर वाज राणा राज सिंह ऑफ मेवाड़, मतलब थे, उन्होंने कहा था कि एनीबडी, किसी भी जने को, मतलब जो मुगल जो रॉयल फैमिलीज हैं, राजघराने हैं राजस्थान के, अगर किसी की भी जबरदस्ती कहीं शादी की जाती है, गेट इन टच विद मी, आई मेक श्योर कि उनकी उनकी पसंद की जगह में शादी करवाई जाएगी और मुगलों में नहीं की जाएगी, ऐसे। सो शी रोट टू हिम। होता था बहुत बार इस तरीके से होता। सो व्हेन ही गॉट द लेटर, he said okay fine, I'll go get married to her, and he sent a message to his, उनके जो सेनापति थे उन लोगों को मैसेज भिजवाया कि जब तक मैं शादी करके पहुंचता हूँ, बिकॉज ही न्यू कि औरंगजेब की सेना भी आने वाली, तब तक आप लोग अजमेर के बॉर्डर पे इनको रोक के रखो, और जब मेरे जैसे फेरे हो जाएंगे देन आई ऑल्सो ज्वाइन यू पीपल एंड फाइट विद हिम। सो उनके जो एक सेनापति थे उनका नाम था चुंडावत, और उनकी उसी दिन शादी हुई थी। उनकी रानी जो थी वो रानी हाडी उनको बोलते हैं, उनका नाम सहल कंवर था, पर उनको रानी हाडी के नाम से जाना जाता था। सो ही जस्ट गॉट मैरिड द सेम डे, एंड उनके पास समाचार पहुंचा कि आपको तो लड़ाई के लिए जाना है, ऐसे ऐसे। तो ही सेड कि व्हाई शुड आई गो, मेरी भी अभी शादी हुई है, आई हैव नॉट इवन सैट एंड स्पोकन टू माय वाइफ, मैंने अभी अभी मैं उनसे मिला हूं, मैं ऐसे कैसे, मैं नहीं जाऊंगा। तो उनकी जो वाइफ थी, she was like shocked कि how can my brave husband talk like this। तो वो पहले उनको समझाने की कोशिश करती है, ही हैज हिज आर्गुमेंट्स, मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे लोग तो जा ही रहे हैं, मेरी तो आज ही शादी हुई है। तो वो कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप तलवार मुझे दे दीजिए और मेरी चूड़ियां आप पहन के बैठो घर पे, मैं जाकर के लड़ूंगी। अरे बाप तो रे। देन ही रियली गेट्स अपसेट एंड या, ही गोज। या। तब जब वो जा रहे होते हैं तो रानी के महल के पास से फिर जा रहे हैं, तो उनको दिख जाती है, शी वाज वेरी प्रिटी। तो अपने एक कर्मचारी को भेजते हैं कि जाओ और उनसे कहो कि कोई निशानी भेजे, तो उस निशानी को याद रखते हुए मैं लड़ाई करूंगा एंड आई कम बैक होम फॉर हर। सो जब वो मैसेंजर पहुंचता है और कहता है कि चुनाव जी जो है वो बोल रहे हैं कि आपकी कोई निशानी चाहिए उनको, शी वाज सो एम्बैरेस्ड। उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी सुंदरता के कारण मेरा पति अपने कर्तव्य से दूर जा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको निशानी चाहिए। कैन यू टेक अ गेस उन्होंने क्या निशानी भेजी अपनी? पता नहीं, आई एम गेटिंग स्कैर्ड विद द स्टोरी। तो उन्होंने अपना सर काट के भेज दिया। Oh God. एंड आई वाज इन क्लास I was 9। expecting something like that. I was in class 9th when I did, and I was the Rani Hardy. And when the choreographer had come, and उस वक्त थोड़ी को ऐसा था कि बच्चों को बैठ के सुनाएंगे कि क्या, पर जैसे जैसे कोरियोग्राफी सीखते गए, and when this came, and I was like shocked। मैंने Yeah. कहा कोई महिला इतनी साहसी कैसे हो कैसे हो सकती सकती है? है? एंड फिर उन्होंने अपना सर काट के भेज दिया। तो जब उनके पास चुंडावत के पास पहुंचता तो ही वाज शॉक्ड, मैंने ये क्या किया? एंड देन ही रियलाइज्ड दैट ही वाज बीइंग रॉन्ग ऑन दिस। सो उन्होंने उनके बालों से वो गर्दन अपने गले में बांधी, एंड ही फॉट, एंड वो काम आए थे, मतलब वो शहीद हो गए थे, पर उन्होंने वो सारी जो सेना थी, औरंगजेब की सेना को पीछे हटाया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। सो व्हेन वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री ना, बहुत सारा सेक्रीफाइस है, एंड बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो हमको, जिसके बारे में पता नहीं है। लोग आजकल फेमिनिज्म एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट आवर वुमेन हैव बीन एम्पावर्ड एंड स्ट्रॉन्ग सिंस ऑलवेज। खूब लड़ी सो मर्दानी, या वो तो झांसी वाली एब्सोल्युटली रानी। एब्सोल्युटली। सो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था, तो उसमें घूमर भी किया था हमने, अरे पूरा, तो वो एक बैक ऑफ माय माइंड था। तो व्हेन माय सिस्टर सेड कैसे आ रहा है, और वो पूरा घूमर पे पेपर लिख रही है एनसीपीए में। सो मेरी रिहर्सल चल रही थी वो गुजराती गरबे वगैरह की, एंड दिस इज 88 आई एम टॉकिंग। सो रात को आकर के मैं बैठी, एंड व्हेन आई सॉ द शो, इट्स ऑन यूट्यूब आल्सो, व्हेन आई सॉ हर इंटरव्यू, I was, first of all, I absolutely fell in love with her. She was so pretty and delicate, इतनी सुंदर, और जिस रुतबे के साथ में, she is just sitting and Asha Parekh ji is taking her interview, and the way she spoke about her culture and the Rajput women and all, and I was like, क्या गर्व है इनको अपने आप पे, being a Rajput female।
एंड फिर जब डांसेस देखे तो आई सेड दिस इज होम, यू नो, आई सेड आई हैव टू जॉइन। देन आई मेट हर। तो जब मैं पहली बार उनको मिलने के लिए गई थी एनसीपीए में, so she was just sitting with chiffon साड़ी ऐसे सर पे लेकर के बैठी हुई नॉर्मली थी, ये and साड़ीज पहनते हैं। she looked so beautiful। मैं तो ऐसे, मैं और मेरी छोटी वाली बहन, वो भी कथक डांसर है, हम दोनों खड़े थे, यूं देख रहे थे उनको, जिसको कहते हैं अपलक, अब ब्लिंक भी नहीं करते, ऐसे देख रहे थे। then she said, अच्छा नंदिनी ने बताया डांस जानती हो कथक? हाँ ठीक है, तो फुटवर्क पहले करो। तो फिर फुटवर्क कराया, तो वो तो सही किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा कल शो है, शो देखने आ जाना, फिर परसों से रिहर्सल। तो मैंने कहा मेरा अपना भी शो है। तो उन्होंने कहा कब खत्म हो रहा है? तो आई टोल्ड हर द डेट मेरा ऐसे कि ठीक है, उसके बाद आ जाना तुम। उस शो के बाद देन आई जॉइन हर, एंड देन फिर मेरा कथक भी छूट गया, मेरा गुजराती वगैरह भी सब छूट गया। देन आई वाज जस्ट, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट होम, यू नो। सो उनसे बहुत सारी चीजें जानने समझने के लिए भी मिलती। So when she asked me कि why did you get attracted towards Rajput women? Yeah. So when I told her about Rani Hardy का सेनानी कहता, she said, do you know वो चारुमती जो प्रिंसेस थी जिसके कारण ये सारा सब कुछ हुआ था, वो कहाँ की बात है? मैंने कहा she said Rupangढ़, which is a part of Kishangarh. She said, Oh, and I was like, oh my God, I'm like, ये connect, attraction तब से है। yeah. So, and she was princess of Kishangarh, but Rajasthan, but married in Santrampur, which is in Gujarat. So, फिर ये what are बड़ा the odds? डर Yeah. नहीं लगा कि ये वॉकिंग अ पाथ जो घूमर किसी को पता नहीं, कथक एंड भरतनाट्यम, दे आर मोर Yes, फेमस yes, डांस yes, फॉर्म्स, yes. नहीं, कि because मैं ये कर रही हूँ, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। but when I joined her, it was not that I'm making a career out of it. It was my passion. मुझे डांस Yeah. करना है, and I loved dancing. And when I started doing that, so जब मैंने करना शुरू किया, तो then I understood that Ghumar is not just a Ghumar one dance. There are two dance forms. And then I learned that Ghumar आप अकेले नहीं नाचते. Ghumar is a group dance. That is how I came to know. Otherwise क्या होता है, आज भी होता है, लोग अकेले नाचते हैं और कहते हैं हम तो घूमर कर रहे हैं। आप अकेले गरबा नहीं कर सकते, आप अकेले भांगड़ा नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। These are group dances. Yeah. So people need to understand. People still don't understand that आप जब घूमर कर रहे हैं, इट इज नॉट अ सोलो, इट्स अ ग्रुप ग्रुप डांस। डांस। आज भी हमारी कितनी रील्स जाती हैं, तो मैं नीचे लिखती हूँ इस शैली को नाच कहते हैं। सोलो डांसिंग जो होता है वो नाच होता है। सोलो नाच जो होता है उसमें आप अकेले भी कर सकते हैं, 2 4 6 लोगों के साथ भी कर सकते हैं, बट उसमें आप किसी भी तरीके से नाच सकते हैं। मतलब सोलो कर सकते हैं, आपकी कोरियोग्राफी हो सकती है, सब कुछ है। उसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको पूरे फुल एक सर्कल में ही डांस करना है। लेकिन घूमर जो है वो सिर्फ ग्रुप में होता है और सिर्फ गोलाकार में होता है। इट हैज टू बी अ सर्कल ओनली। That's the reason for That the is name how. also. तभी घूमर है नाम। आई डोंट नो, घूमर के लिए, घूमर का जिसको शाब्दिक अर्थ कहते हैं, द वर्ड ऑफ द मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आई एम आल्सो एलडी एट टाइम्स। वो सबसे होता है। सो इट्स लाइक कि पीपल से कि घूमर का मतलब है घूमना, पर जब आप गाना सुनते हैं तो मारी घूमर छे नखराड़ी, तो कि लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई घूमर मतलब मेरे घूमने का तरीका नखराला है। लेकिन जब ये कहता है अलीजा लेता आइजो सा घूमर को लंजो, तो जब वो अपने प्रियतम को कह रही है कि घूमर का लंजो लेकर के आना, तो फिर वो लेके कैसे आ सकता है अगर वो डांस का स्टाइल है? तो आप डांस का स्टाइल कर सकते हैं, पर कोई लेकर के अपने प्रियतम को तो नहीं कह सकता ना कि मेरा घूमर लेकर के आना। सो दिस इज समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ जिसको कहते हैं ना रिसर्च। स्टिल आई पर्सनली फील सो, एंड दिस इज व्हाट राजवंश आल्सो यूज्ड टू से, कि घूमर का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता है। अब कितने ही शब्द हैं जो खो गए हैं, क्योंकि वो भाषा, उस तरीके की भाषा वगैरह खत्म हो रही है, उन शब्दों का जानना करना कम हो गया। तो इट इज देयर इन द सॉन्ग, बट द लिटरल मीनिंग लोग कहते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज जस्ट घूमना। बट द डांस शैली जो है उसको, उस शैली को घूमर कहा जाता है, जो गोलाकार में होता है। तो इट्स लाइक जैसे ब्रह्मांड है, हम सब अपने एक्सिस में भी घूम रहे हैं, एट द सेम टाइम हम सूरज के चारों तरफ भी सारे प्लैनेट्स। सो दैट इज हाउ द घूमर Ghumar इज is also designed. यस। सो शी यूज्ड टू एक्सप्लेन इट टू अस, एंड शी रियली वाज इतना आसान करके हमको चीजें सिखाती थी, समझाती थी ना, कि इट वाज अमेजिंग। सो अभी भी, आज भी हम, जैसे मैं अपनी सोलो की रील डालती हूँ तो मैं नीचे लिख करके बोल रखती हूँ कि इस शैली को नाच कहते हैं। सो देयर आर पीपल हु से कि नहीं आप गलत बता रही हैं, सब कुछ है, बट ये अब हो रहा है। लेकिन जब मैंने 88 में ज्वाइन किया था तो इट वाज जस्ट दिस दैट
I loved the dance and I just felt home, and I didn't even know कि how long will I be dancing with her, because I don't know शादी होकर के कहाँ जा रहे हैं, whether शादी होने के बाद में किस तरीके से क्या. So 88 to 94, till the time I got married, dance had become a very essential aspect of my life. It had become like oxygen, you know, I breathe dancing. So जब शादी की बात चल रही थी, so I'm a Brahmin from Uttarakhand and my husband is Rajput from Jodhpur side. So जब बात चली थी, I just told him, I said, see, in 4 सालों में मैंने ये समझ लिया है कि राजपूत फैमिलीज में घर की बेटी बहुओं को ऑन स्टेज परफॉर्म करना अलाउड नहीं है, दे डोंट लाइक. सो बट आई कांट लीव डांसिंग. सो अगर आप कहेंगे कि मुझे डांस छोड़ना है, सो आई हैव टू से नो टू यू. सो ही सेड, नहीं, माय फैमिली इज लिबरल इनफ एंड यू आर डांसिंग व्हाट आवर फैमिली, it's a part of our Yeah, culture. वो राजपूत है ना. Yes, so it is absolutely fine. It's, you don't have to, you'll not have to leave dancing. So I was like, yes. Then it's done. Done. So my in-laws were very supportive, very very supportive. उन्होंने कभी भी And मना नहीं करा. नहीं. And my mother-in-law was from UP, आगरा से थे. तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे तो डांस करने का शौक मुझे बहुत है, पर मैं कर नहीं पाई, लेकिन तुम जब नाचते हो तो तुम्हारे थ्रू मैं भी नाच लेती हूँ. I was like so sweet. I was like, फिर कितनी बार कहते चलो तुम डांस करो, मैं भी कोशिश करती हूँ. Then one day my father-in-law said that, you know, घर की जितनी भी बेटियां हैं बेटा, तुम उन लोगों को सिखाओ, उनको भी आना चाहिए, ये तो हमारे ही कल्चर की बात है. So I said yes, why not? So you know, being blessed with good parents and good in-laws, it's किए होंगे कुछ पुण्य किए होंगे पिछले जन्मों में. सच So, में definitely. इतना प्रोत्साहन मिला. एंड इन दैट एरा, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 30-40 साल पहले की बात कर रहे हैं. Absolutely. तो तब का मिला है तो. So my husband always used एंड वो to, भी उस डांस फॉर्म के लिए जो नोन भी नहीं था. yes. So when I joined her also, तो उस वक्त कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग जब गवर्नमेंट आर्टिस्ट हैं तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो they were government officers who said कि आप क्या गाना गा रहे हैं, ये आप लोग क्या नाच कर रहे हैं. तो she used to say ये हमारे पैलेसेस में होता था. दिस इज हाउ वी डांस, बीइंग अ क्वीन और अ प्रिंसेस, दिस इज हाउ, बचपन से हमने ऐसे ही डांस किया है. और हम वही तो कि नहीं नहीं, आपको भी थोड़ा सा रिदम बढ़ाना चाहिए, थोड़ा ऐसे करो. शी सेड नहीं, मैं वही करवाऊंगी जो मेरे घरों में होता आया है, अब मैं उसको उसी तरीके से प्रस्तुत करूंगी. तो आज 40 साल हो गए हैं, हमारे म्यूजिशियंस आज भी राजस्थान से आते हैं जो ट्रेडिशनली पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसे ही काम करते आए हैं. हम रिकॉर्डेड म्यूजिक पे डांस नहीं करवाते हैं. वर्कशॉप भी होती है तो इट बिकम्स लिटिल एक्सपेंसिव, बट हम जाएंगे तो सारे इकट्ठे जाएंगे. हमारे म्यूजिशियंस आते हैं राजस्थान से, live music, and it's not just 1 2 3 का डांस, it's the complete culture. The handing over of the culture happens, तब चाहे वो 3 घंटे की मास्टर क्लास हो या 2 दिन का वर्कशॉप हो या 10 दिन का हो. पहले तो 1 1 महीने की वर्कशॉप होती थी, अब तो किसी के पास टाइम नहीं टाइम है. नहीं है. सो वो 1 महीने से 15 दिन हुआ, 15 दिन से 7 दिन, और अब जितना भी होता है, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट की जितना हो रहा है उतना करना है. तो विद टाइम अर्चना इट बिकेम दैट ओके फाइन, पीपल में अवेयरनेस आनी चाहिए. अदरवाइज उस वक्त तो ये बुद्धि ही नहीं चलती थी. आई थिंक वी वर लाइक उस समय में, एटलीस्ट आई कंसिडर माई सेल्फ एब्सोल्यूट ढक्कन, क्योंकि ये नहीं था कि करियर में क्या करना है. एज आई सेड, आई जस्ट kept on whatever kept coming, I kept on doing that. So कि नहीं मुझे यही करियर बनाना है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था. सो घूमर पहचाना है ये नहीं जाना है, आई नेवर केयर्ड. मुझे, मैं डांस कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी. शायद तभी कर पाए. Yes, maybe. क्योंकि उस समय तो अगर करियर सोचते तो इससे करियर तो Yes, दूर yes, तक because दिख नहीं इसमें रहा कुछ था. commercial aspect है. We don't run any classes. Till date, we don't run any classes. Online or offline, we don't. कोविड के टाइम में भी कितना लोगों ने कहा, आज भी लोग कहते हैं मैम ऑनलाइन क्लासेस कर लो, बट वी विल नॉट, बिकॉज द मोमेंट वी डू ऑनलाइन क्लासेस, अब जब हम सिखाएंगे तो हम म्यूजिशियंस को तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क का, बैंडविड्थ का भी इशू होता है. और अगर हम म्यूजिशियंस को नहीं ऐड कर रहे हैं, एक बार जिनको सीखना है ना, ऐसे जो हम जब सिखाते हैं ना वन ऑन वन, इट्स अ डिफरेंट एम्बियंस ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट, पूरा माहौल ही अलग होता है. और अगर ऐसे ही देख के ही सीखना है तो फिर रिकॉर्डेड बहुत सारी चीजें आई हैं, आप लोग वैसे ही सीख लीजिए. सो लॉन्ग डिस्टेंस वैसे वो नहीं, लाइव या जो बज रहे हो आनंद इंस्ट्रूमेंट्स उस समय बज रहे हो और बहुत अलग गा होता भी है. उस समय रहे हो, और बिल्कुल, फिर आप डांस करो, वो तो कुछ और ही वो गाना चल रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, देन यू आर बीइंग told why those women were dancing like this, what is the meaning of this song. So वो पूरा जो होता है ना 3 घंटा, I always say that is my time. सबके मोबाइल साइलेंट पे रहते हैं,
एंड इट इज जस्ट नोबडी इज थिंकिंग आउट बच्चा स्कूल से आया कि नहीं, मैंने खाना बनाया कि नहीं, या मेरी एग्जाम है कल की क्या, कुछ नहीं. वी आर जस्ट विद कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स. So those 3 hours are just purely yours when you are connected with it and you are dancing. So that's the fun. So वो बहुत अच्छा लगता है कि बातचीत भी होती है, डांस भी कर रहे होते हैं. कितने लोग आते हैं कि we are not dancers. कर पाएंगे? Of course कर पाएंगे. Everybody can dance. There's rhythm with everyone. And age is also, हम लोग, there was one student who she was 77. And she came and she said, Student who was yes, 77. yes. Oh, wow. She came and she said, can I? I said, of course. You want to? She said, yes, I want to. I said, if you want, then you can. किसी ने जबरदस्ती भेजा है तब आप नहीं नाच सकते हैं, पर अगर आपकी इच्छा है डांस करने की तब तो आप किसी भी उम्र में आइए, आप नाच सकते हैं. फिर फिजिकल, वैसे डांस इज समथिंग जो पहले शुरुआत भी हुई थी ना, तो इट वाज मोर अबाउट, आई डोंट नो कब शुरुआत हुई थी वैसे तो, पर वो एक अपने आप को अर्पण कर देना गॉड को, या यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, तो इस मेडिटेटिव कहीं और एक ले जाता है आपको किसी बहुत और. बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. और शुरुआत तो हम कह सकते हैं शिव जी से हुई है, उनका हाँ, तांडव. तांडव. हर किसी जो भी क्लासिकल है या कहीं पर भी जो भी थोड़े से ज्यादा नटराज. अटैच रहता है, नटराज हमेशा रहता ही हमेशा है. और हमेशा फिर अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी शिव शिव जी जी का है. है. तो वो जब हम डांस भी सिखाते हैं तो हम बताते हैं कि लेफ्ट साइड, इसीलिए जब शादी भी होती है तो वाइफ को वामांगी कहा जाता है. लेफ्ट साइड इज ऑलवेज, हम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बट लेफ्ट साइड इज वेरी फेमिनाइन. जैसे जब बच्चा भी पैदा होता है तो माँ कभी भी यूं नहीं उठाती, जो नेचुरली आता है वो हमेशा लेफ्ट साइड ही बच्चे का चेहरा होता है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें हमारा डांस, हमारी फेमिनिटी, और इसीलिए जब लोग कहते हैं ना, जब पुरुष भी नृत्य करना शुरू करते हैं तो वो जो ग्रेस है, जो फेमिनाइन कैरेक्टर है, दैट बिकम्स लिटिल एक्स्ट्रा इन दैट पर्सन. एंड डांस भी अलग अलग तरीके का होता है. एक मैस्कुलाइन डांस होता है और एक फेमिनाइन डांस होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट इज द अप्रोच एंड हाउ यू आर डांसिंग. सो डांसिंग तो इतना पुराना है. और जैसे कहते हैं ना, लड़की सर्वगुण संपन्न चाहिए, तो सर्वगुण में डांस, गाना, सीना परोना, अपने आप को श्रृंगार करना, तलवारबाजी करना, सब चीजें आती हैं. तो वो हमेशा हमारी संस्कृति का हिस्सा ये सर रहे रहा हैं. है. हाँ. जब आक्रांता आए हमारे देश में, उसके बाद से लड़कियों को जो है उन पे रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हुए हैं. तब भाई कपड़े आपको ऐसे ही पहनने पड़ेंगे. जैसे राजस्थान में पहले सिर्फ कांचली और घाघरा पहना जाता. कांचली इज अ बैकलेस ब्लाउज. बट जब मुगल इन्वेजन हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद उस कांचली के ऊपर राजपूत महिलाओं ने कुर्ती भी, स्लीवलेस कुर्ती भी पहनना शुरू किया. सो इट इज नॉट मी हु सिंग. आप मिनिएचर पेंटिंग्स देख सकते हैं, जो पुराना है, कल्चर, हिस्टोरिकल एविडेंस है इन सब चीजों के. तो सब जगह की यही बात है. और अगर जैसे कितनी बार होता है ना, लोग कहते हैं आप लोग तो बड़े कंजर्वेटिव होता है, ऐसा है वैसा है. कंजर्वेटिव नहीं, हमारी तो देवियां जो है किसी के भी सर पे पल्लू भी नहीं होता है. बिल्कुल. और मैं एक और उदाहरण देती हूँ. जब लोग एम्पावरमेंट, मैंने, मुझे शुरुआत में लोग बुलाया करते थे कि वुमेन्स डे है, आप आइए और बात कीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट में फेमिनिज्म. फिर मेरे जाके बाद में वहां पे लड़ाइयां हो जाती. मैं कहती थी आप ये कहाँ वेस्ट का कल्चर लेकर के आ रहे हो. वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड या. एंड वुमेन आर गिवन सो मच ऑफ रिस्पेक्ट नाउ. वो अलग बात है कि अब अलग अलग परिस्थितियों के कारण जो जो चीजें पिछले ऑलमोस्ट 1000 साल का हमारा इतिहास ऐसे है कि पहले तुर्क, मुगल, अलाना फलाना सब आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो 800 1000 साल का है. तो 800 1000 साल की ग्रूमिंग है, और जिसको निकाल के हमको खुद रियलाइज करना पड़ेगा महिलाओं को कि वी वर एम्पावर्ड एंड वी शुड गो गेट अटैच टू आवर रूट्स अगेन, या. फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. जब हमारे कुछ भी, हर जने के घर में कुल देवी देवता होते हैं, कुछ नहीं होता तो हम उनकी पूजा करते हैं. जितनी भी हमने कहानियां सुनी है, ये हुआ कि इस जने से कुछ नहीं हुआ तो वो फलाना भगवान के पास गए, 1 लेवल अप. फिर नहीं हुआ तो 1 लेवल अप, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए. हाँ. पर जब उनसे भी नहीं होता तो वो किसके पास जाते हैं? वो आदिशक्ति के पास जाते आदिशक्ति हैं. के पास जाते हैं. आदिशक्ति अलग अलग स्वरूप लेकर के समस्याओं का समाधान करती है. कोई भी एक भी कहानी मुझे आज दिन तक किसी ने, ना मैंने पढ़ी है ना किसी ने मुझे बताया है, कभी सुना है कि आदिशक्ति से ये नहीं हुआ, देन शी वेंट टू समवन एल्स. नहीं. सो हु इज एट द टॉप? वी आर एट द टॉप. या. We just have to Remember that. remember that we have to just introspection Yeah. and get connected inside. एम्पावर्ड होने का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है. एम्पावर्ड होने का मतलब ये, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल फॉर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ First ऑल, of all.
एंड अपने आप को स्ट्रेंथ हमने अपनी महसूस कर ली ना, देन वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. जब तक किसी ने शूटिंग नहीं सीखी है तो हम दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन द मोमेंट यू होल्ड अ राइफल एंड स्टार्ट लर्निंग शूटिंग, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स किसको शूट करें और किसको किसको नहीं नहीं करें. करें. वही वाली बात है. So the day we will know our strength, we'll become more responsible towards our own selves. It's that simple. That's so true. So to me, life just happened and I just went Kept on with the walking life, with it, running with it, running with it. running with it. Acha, now going back to I think 2003, Sanjay Leela Bansali probably came at one of your. Yes. You invited him to Yes, your yes. performances, and Yeah. then he said ki, Yeah. if I'm not wrong, he tha na ki he Yes, said yes. ki I would like to have this dance form in my Yes. movies. So actually he would हम डिस्कशन कभी-कभी बातचीत हो, उसकी फिल्म रिलीज हुई तो आई वुड गिव हिम अ कॉल, बातचीत होती रहती. सो ही सेड कि you have stopped doing Gujarati, but what are you actually doing? So I explained it to him. So he said कभी भी बॉम्बे में शो होगा तो बुलाना मुझे. So 2003 में when it was happening, so that time he was free and he could come. Okay. So एक तो live music, then when we are presenting the traditional कपड़े पहनते हैं हम लोग बिल्कुल, मतलब मेहंदी भी लगती है, हम आलता नहीं लगाते, मेहंदी लगाते हैं. Proper मेहंदी. ट्रेडिशनली नहीं तो प्रॉपर मेहंदी कैसी वाली, ये डिजाइन वाली नहीं, पुराने जमाने में जैसे वो So 5 गोल. एक गोल यहाँ पे और हाँ, ऐसे हाँ, सब ना, हाँ, वैसी वाली वैसी मेहंदी वाली लगती है. मेहंदी. तो क्या होता था कि एक हाथ में तो ऐसी, अब दूसरे हाथ में कौन लगाए, तो ना यूं हाथ करके उसमें मेहंदी डाल देते हैं और ऐसे बंद कर देते हैं. तो ये बंद कर दिया तो अंदर मेहंदी प्रेस होती है. तो हाँ. जब हाथ यूं ऐसे कर दिया तो सारी रेखाएं ऐसे दब जाती हैं. तो जब आप मेहंदी निकालते हैं ना, तो आपकी रेखाओं के हिसाब से वो डिजाइन बन जाती है आपके हाथ में. Oh wow. बहुत सुंदर लगता है वो. सो जब डांस करते हैं तो हमारी मेहंदी आज भी हम वैसे ही लगाते हैं. घाघरे भी पुरानी स्टाइल के हैं हमारे, कुर्तियां भी वैसी, ओढ़ने भी आज भी हम भी, अभी भी हम दूसरे जो सिंथेटिक मटेरियल वगैरह नहीं, मलमल के जो ट्रेडिशनल ओढ़ने होते थे वही, उस पे वैसे ही गोटा पट्टी लगेगी, किरण लगेगी, सब कुछ, बाजू की लूमें होती हैं सब. तो उसको बुलाया था, संजय वाज देयर फॉर द शो एंड ही वाज रियली मेस्मराइज्ड. और हम लोगों ने अलग अलग किए थे डांसेस उसमें, घूमर अलग अलग तरीके की थी, नाच थी, फिर एक ढोल का नाच था. तो वो सब देखने के बाद में, और फिर थाली का एक नाच था जो फागन के टाइम में होता है, हाथ में थाली लेकर के नाचा दिया जाता है. जिसमें रखते हैं. नहीं, दिया नहीं रखते हैं उसमें, वो फॉर उसमें आर्टिस्टिक लिबर्टी ली गई थी. दिया लेके डांस नहीं किया जा सकता है. इट इज जस्ट द कांसे की थाली होती है और उससे अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं. So he saw all that, and when the show ended, he spoke to Rajmata Sahab and he said कि अगर मैं कभी कोई फिल्म बना रहा हूँ आगे, so I want you to choreograph one song for me. तो she said she liked his work with the perfectionist, जो सुंदरता से and बिल्कुल, culturally rooted yeah. and all. So she said हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे. So that is how the deal उसी वक्त, he said पक्का आप करेंगे, she said बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. So that was a promise made. So back in 2016 when he connected and he said ज्योति मैं ये फिल्म बना रहा हूँ and मेरा cover song is घूमर. So I said but Rajmata Sahab passed away in 2013. So he said कि okay fine, then you do it. And I just went blank because the work was not for Jyoti Tomar. The work was for Rajmata Govardhan Kumari. हाँ. उनका काम मैं करूं, सिंपल सी बात है, ये मेरी औकात नहीं है. आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट शी. सो फिर मैं गई, वहां पर मिली, मुझे गाना सुनाया संजय ने and all that. Then he even asked कि do you have girls and all? I said definitely shape and size will matter. He said yes. एक जैसे अच्छे. मैंने कहा देखो हमारा कॉमर्शियल ग्रुप तो है नहीं, we are just limited people and वो भी सब अपने अपने, कोई कॉर्पोरेट वाला है, कोई किसी का अपना बुटीक है, कोई होम मेकर है like me, तो हम ऐसे ही हैं सब. So this will be coming for shoot for so many hours, so many days will not be possible. So then he said okay fine, then I'll ask Kriti Mahesh to join, and she has her team also and she will be able to train जो बैक डांसर्स लिए जाते हैं उन सबको. सो इसे ओके ठीक है. पर मैं उस मीटिंग के बाद घर तक ड्राइव करते करते मैं सिर्फ रोते हुए गई एंड आई वाज टॉकिंग टू माय गुरु एंड आई वाज लाइक कि why have you done this, you should have been around, you know, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, that was the question, you know, because अगर मुझे करना है ना तो it's my name, I can do what I want to do. Yeah. So जो criticism आएगा that will be like ज्योति तोमर ने ऐसे करवाया, but when I'm doing it on behalf of her, the responsibility Is humongous. changes. Yes. And it's a shoe. I don't think मैं 10 जन्म लेने के बाद भी 10 या 20 जन्म लूंगी, 100 लूंगी तो भी मैं नहीं भर सकती हूँ, because Archana, she was such a ब्यूटिफुल डांसर. एंड जो उन्होंने दुस्साहस किया ना, बाहर निकल के उन्होंने सिखाया,
nobody can match that. So then again फिर गए, then he would call a ढोल वाला, then I had to teach Kriti also because उसको तो ये form नहीं पता था, तो फिर उसको भी train किया, then everything happened. So I was like, till the time the song fully shoot हो करके आ नहीं गया था, final edit नहीं देखा था, I had told my family that, you know, if it is not the way it should be, मैं अपना नाम भी नहीं रखने वाली हूँ, बिकॉज राजमाता साहब का तो भूल ही जाओ. आई कैन नॉट, बिकॉज मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे उनका नाम नीचे आए. बट व्हेन आई सॉ द एडिट आई वाज लाइक हैप्पी, एंड देन आई सेड कि हाँ, राजमाता साहब का नाम आना चाहिए. सो जो लास्ट क्रेडिट्स में आता है तो अकेडमी का और राजमाता साहब का नाम भी आता है, बिकॉज the lady took such a big step, and people must know that this is what, because of her a person is, this art form is out. सो ये हुआ. तो फिर जाती थी रिहर्सल से भी घर जाते तो रोते रोते जाते थे, बिकॉज यू नो आई टू बी लाइक मैं क्या करूं. आज भी मैं कुछ भी शो या कोई भी वर्कशॉप प्लान होता है मेरी, मैं जो लिखती हूँ उसमें सबसे पहले मैं लिखती हूँ कि प्लीज हेल्प. आई ऑलवेज टेक हर ब्लेसिंग्स, आई ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम हर. ऐसे कि मुझे मदद करो आप. सो शी इज देयर, शी इज ब्लेसिंग मी. सो जब मेरी रील्स पे कोई कहता है ना कि आप तो को देख के मुझे मेरी दादी की याद आई या नानी ऐसे ही नाचते थे, तो देन आई से कि ओके फाइन, आई एम ऑन द राइट पाथ, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, कोई मिलावट नहीं हुई डांस फॉर्म में. सो देन आई एम हैप्पी अबाउट इट. Were the only student who took that mantle forward या कैसे? नो, हम लोग सारे इकट्ठे थे. इट्स जस्ट दिस दैट जब हम लोगों ने वर्कशॉप करना शुरू किया, सो आई थिंक दैट इज द टीचिंग जीन्स इन मी. जब हम 4 लोग करने गए थे तो उस 4 में से 2 मेरे सीनियर्स थे. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द, आई थिंक 1990 में फर्स्ट वर्कशॉप हमने किया था, तो उन्होंने हम 4 लोगों को भेजा था. डेफिनेटली शी हैड इनफ कॉन्फिडेंस इन अस दैट हम लोग कंडक्ट कर पाएंगे वर्कशॉप. तो जब हम वहां पे गए करना शुरू किया तो वी वर टीचिंग, एंड it just happened organically that in the end I found myself conducting the class. And when she came after a few days, then she saw that since I'm doing it correctly, then she would say ki beta tum hi sikhate ho. So she always made it a point that I'm conducting the class. Now socho, जब मैंने MA किया, my father said that you start teaching, हिंदी पढ़ाना शुरू करो. And I don't like teaching. Same subject लगातार लगातार कौन पढ़ाता है same syllabus? And just think, since आज 38 साल से एक ही डांस फॉर्म सिखा रहे हो. So it's like so funny ना कि आप क्या बोलते हैं और कब क्या होने वाला है आगे. So then it just happened organically, and that's her. She's been very kind that she had that kind of confidence. And शायद मेरा पागलपन था कि whenever she would say, मैं तो अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ के भाग के चली जाती थी वर्कशॉप के लिए. When my kids were very small, I would take them with me वर्कशॉप के लिए. एंड वहां पे मेड रहती थी तो वो उनके साथ में रहती थी, वो कॉर्नर में खुद डांस करते रहते थे और यहाँ पे मैं क्लास कंडक्ट कर लेती थी. तो कंसिस्टेंसी से मैं चलती रही. एंड देन देयर वर टाइम्स जब अब्रॉड जा रहे, आई डिडंट हैव टाइम, सो आई डिडंट गो. द रेस्ट ऑफ द अकेडमी वुड गो. सो अभी भी जब हम वर्कशॉप्स करते हैं, सो इफ आई कैन गो आई कंडक्ट द क्लास, इफ आई कांट देन समवन एल्स कंडक्ट्स द क्लास. सो काम हो चलते रहना चाहिए. अब तो काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर स्टिल द सेम हम्बल छोटा सा यूनिट ही है. वी डोंट रन एनी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, एज आई टोल्ड यू. तो जब वर्कशॉप होती है, दैट इज द टाइम ऑल ऑफ अस वी मीट. एंड अभी लास्ट ईयर नवंबर में घूमर फेस्टिवल हुआ था जयपुर में. सो वी हैड गॉन देयर. सो वी क्रिएटेड अ रिकॉर्ड राजस्थान टूरिज्म ने करवाया था. तो रिकॉर्ड ये बना कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान की, उसमें टोटल मिला के करीब 6,100 women, they danced together, same time, same music. और उस 6,100, वाओ. एंड उसका जो होगा. यस, इसमें यार सब, मतलब जो उदयपुर में भी सेम टाइम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, ऐसे सब 7 डिस्ट्रिक्ट में मिलके उनको म्यूजिक भेज दिया गया था पहले कि ये म्यूजिक जो है. अच्छा, ये अलग-अलग अपनी-अपनी जगहों पे कर रहे थे. अपनी-अपनी जगह पे सब लोग नाचे इकट्ठा एक साथ सेम टाइम से. एंड उसका जो इनॉग्रेशन था उसमें वी वर, द अकेडमी वाज, we got the honor to do the inauguration dances for them. And so we danced on stage. Rest everybody had competition चल रहा था. And I was like really fortunate enough that I became a part of जो गाना जो जिसपे सबको करना है, तो I was a part of that. And बाकी सब जो कर रहे थे, but it was a very good experience कि वहां जाकर के हम कर पाए. So definitely what we danced and what rest of the people were dancing was different, because
we were very authentically dancing. Of course, हो तो और वहां पर जो आई थी महिलाएं, it was while they were on their best of cultural aspect, कपड़े वगैरह सब कुछ, लेकिन that day I just realized that, you know, a big part of Rajmata Sai is in me, because she used to get very restless if somebody is dancing incorrect या कपड़े अगर गलत पहने. तो उस दिन कहा तो हमारी अपनी टीम भी ऐसे जा रही है, जितने रास्ते में लोग, तुम्हारा ओढ़ना गलत है, माथा ऐसे, तुम्हारा लहंगा क्यों नहीं. I just went on that, and then मैं जाके बैठी तो my daughter was also part of that group, so she said, Mama, what went wrong with you? Why are you shouting at those people? They are. Then I just sat and I said, नहीं, हाँ सही है. Why would they listen to me? You know. I know. But it is so sad. मैं उन्हीं को नहीं, मैं otherwise भी जब मैं लोगों को देखती हूँ, इतना नीचा लहंगा तुमने क्यों बनाया है? या तो हील्स पहनो, और नहीं पहनी है तो लहंगा एंकल लेंथ तक रखो, क्या खराबी है उसमें? सब नीचे का कचरा वचरा झाड़ू पोछा लगाते हुए. तो सबको डांट दिया उस दिन. जो जो रास्ते में सबको डांट दिया. भाई आफ्टर ऑल पुलिस वाली भी तो बनना था. Correct. अच्छा, but coming back to your choreographing now again, Yeah. उसमें मतलब आई थिंक दीपिका का उस समय बलम पिचकारी दैट सॉन्ग उसने करा था उससे I पहले. think so, yeah. उसके बाद ये वाला डांस फॉर्म विच इज मैं रिस्ट्रिक्टिव नहीं बोलूंगी पर बहुत Delicate. डेलिकेट है, Elegant. कंट्रोल्ड मूवमेंट्स है, Control, इफ आई मे से Yeah, लाइक yes. दैट. तो वो उसको सिखाने के लिए उसको कुछ अनलर्न कराना पड़ा या क्या करना पड़ा? हाउ डिड इट ऑल, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Experience was very good. Number one, because it was through Sanjay, so he has a particular way of working. See, he himself is a choreographer. So आप उनको बता सकते हैं क्या कैसे होगा. In the end, he is the one who will decide what will happen and how. While the choreographer has all the liberty to do, but he is very particular कि मेरा गाना कैसा दिखना चाहिए. So when I was teaching Deepika also, he had told me that सारी बारीकियां, she must learn that. And Deepika is a very humble, she is a diva, ऐसे ही नहीं है वो, very down to earth person, and she would ask me if मैं कुछ सिखा भी रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो she would ask me questions and she would understand कि ये ऐसे नहीं होकर के ऐसे क्यों हो रहा है, इतना delicately क्यों. So to make her understand कि भाई ये डांस फॉर्म उस समय का है जब सेफ्टी पिन और हेयर पिन नहीं होती थी. और जो रानी महारानी डांस करी, उनके घाघरे इतने हैवी होते थे क्योंकि उसमें रियल गोल्ड है, सिल्वर है, मोती वगैरह सब मोती जड़े हीरे होते सब थे. जड़े हैं. हाँ. जैसे राजनाथ साहब भी हमको बताते थे कि उस समय सोना वगैरह इतना होता है कि एक एक पाँव में एक एक 1.5 किलो सोना पहना जाता था. अरे बाप रे. अब आप सोचो जब पाँव में ज्वेलरी वगैरह बाकी और अलग, तो और फिर तो उनको घाघरा वेट उठाने की वगैरह जरूरत नहीं थी. So to understand that, so when you are dancing, so there were times when she found it a little difficult. So जो ओढ़ना हमारा था वो उसको ओढ़ाया, और मैंने कहा कि अब ये यहाँ पे आपने ये ऐसे दबा लिया है, यहाँ से खुलना, ये नहीं, ऐसे नहीं खुलना चाहिए, ये यहाँ से नहीं गिरना चाहिए, सर का पल्लू भी नहीं खुलना चाहिए. तो she's tall, she's very tall. Yeah, I know. And ऐसे आर्च है, so and she's a भरतनाट्यम डांसर. तो भरतनाट्यम डांसर ऐसे होता है, कथक वाले फिर भी यूं होते हैं, और घूमर तो और यूं ऐसे संभल के आगे आगे. घूमर आप यूं नाचेंगे, भांगड़ा आप यूं नाचेंगे. सी क्या होता है कि हर डांस की करने का स्टाइल डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल कंडीशन. अब आप राजस्थान जाएंगे, इट इज रेगिस्तान. हाँ. आप उसमें यूं ऐसे उछल कूद करके नहीं नाच सकते, रेत है, कैसे पैर अंदर नाचोगे आप? घुसेगा. आप पंजाब आओगे, पुख्ता जमीन है, उसमें यू कैन जंप एंड यू कैन डांस, ऐसे कर सकते हैं. आप पहाड़ों में चले जाओ, जमीन भले ही पुख्ता है पर नैरो है, और वो खेत के जैसे वाली है, तो उसमें जब लोग डांस करते हैं ना, गढ़वाली डांस के नाम पे एक्रोबैटिक्स करते हैं रशियन डांस के हिसाब से. सो मुझे बड़ी हंसी आती कि भाई ऐसा तो जरा गढ़वाल में जाके नाच लो. उसके बाद देखो गिर डांस जाते. खत्म होते तक में 5-6 तो नीचे मिलेंगे, तल्ली ताल में मिलेंगे, मल्ली ताल से. सो यू नो, हम लोग का ये भी बड़ा होता है, हम कभी बाहर जाते हैं तो बारात में जो बाराती नाच रहे होते हैं ना, हम देख, ये पंजाब से होगा, वो जो ना गुजरात से होगा, ये पहाड़ी पक्का, क्योंकि वो यूं ही नाचेगा. पहाड़ी ऐसे भी नाचेंगे ना तो बड़ा नैरो नैरो ही नाचेंगे, बिकॉज वो डीएनए used है to, हमारा. हाँ. वो भले ही सीखा रहे पर वो डीएनए है, हम वैसे ही नाचेंगे. किसी भी पंजाबी को आप यूं नाचते हुए नहीं देख सकते, वो है, वो यूं ही नाचेंगे. सो व्हेन आई वाज टीचिंग हर आल्सो, सो
you know, जब मैंने ये सब कहा तो when she was dancing like this, all of a sudden everything became like this, you know, because आपको you're conscious कि यहाँ से नहीं खुलना चाहिए, you're conscious मेरा ये पल्लू यहाँ से नहीं गिरना चाहिए, you're conscious आपका पल्लू इधर से भी नहीं खुलना चाहिए. So all of a sudden जो यूं है, अब आपको गोल घूमेंगे, अगर आप यूं तन के खड़े हैं तो गोल घूमेंगे तो खुलेगा ही, एटलीस्ट सर तो खुलेगा ही. जहां आपने हल्के से अपने बॉडी को हम्बली ऐसे आगे किया तो उसको सबको शेप मिलता है. So then when she danced, I was like, yes. And she was so happy. Oh, yes, I got it. So even while shooting, after every step, she would just look at me and ask the eyes. She would also shake hand. So it's a very good, nice experience. I still remember the very pehle shot ke liye, because she started shooting for the film with this song only. So the moment she took ek circle liya, and then she just, wo ghagra itna heavy tha. She was out of frame, and then Oh God. 2-3 people ran to hold her, क्योंकि इतना घाघरा, आप फुल स्विंग घूमे तो घाघरे का भी तो वजन होता है, उससे भी तो एक पाव बनता है. बिल्कुल. So, but it was fun shooting and everything. And then Sanjay, what he had seen our performance, so accordingly he just knew कि किसके बाद मुझे क्या चीज चाहिए. तो एक हमारा ढोल का नाच है, उसमें हम घूंघट लेकर के करते हैं. सो ही वांटेड कि वो तो आना चाहिए. तो ऑन द लास्ट डे ही सेड कि नहीं, ये जो गाने का जो गोलाकार बन रहा है, ही इज इतनी डिटेलिंग में संजय वर्क्स कि जो ढोला का है, इट्स नॉट ढोला वाले ठाट, इट्स ढोला वाले. तो ये जो गोल घुमा वो डांस में नहीं आ रहा है. तो देन एनीवेयर वी वुड गेट स्टक, देन ही वुड से गाना बजाए, कुछ और स्टेप बताओ, तो आई वुड कीप डांसिंग, शोइंग हिम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. देन ही सेड कि नहीं, ये इसमें हम घूंघट खींचेंगे फाइनली, घूंघट तो आना चाहिए. सो पहले ही वाज थिंकिंग, देन ही सेड कि अगर पूरा डांस घूंघट में होगा तो लोग कहेंगे कि ये दीपिका नाचेगी, कौन नाचा, हमको क्या क्या मालूम. मालूम है. तो एज अ प्रोटोकॉल घूंघट होना चाहिए था. सो देन फिर उसने कहा लेकिन वो आना तो चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज डन. सो वो भी किया. सो आई रियली रिस्पेक्टेड द वे ही लेट दिस सी कॉमर्शियल एस्पेक्ट. इट वाज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, Of course. सो कॉमर्शियल एस्पेक्ट तो लिबर्टी तो थोड़ी बहुत उसमें होती ही है. बिल्कुल. स्टार्टिंग फ्रॉम वो दिया उसमें रखा गया था. एवरीबडी नोज कि कोई भी आग लेकर के ऐसे नहीं नाच सकता है, जल जाएंगे कपड़े. दैट वाज अ प्रेजेंटेशन. इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द आर्ट Art फॉर्म, form. इट इज प्रेजेंटेशन. दूसरी बात, ही न्यू कि ये डांस सिर्फ गोलाकार में ही होता है. तो नेक्स्ट व्हेनेवर यू विल वॉच द सॉन्ग, पूरा गाना सिर्फ गोलाकार में है. आइदर इट इज अ बिग सर्कल, उसके अंदर छोटे 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 हैं, या अलग 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 5 गोल हैं. Circle बने हैं. कहीं पर भी आपको लाइन क्रॉस हो रही है, या जिगजैग हुआ, या ऐसे स्लांट लाइन, कहीं पे भी नहीं, सब गोलाकार में ही है. सो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट ही वांटेड इट टू बी प्रेजेंटेड द The way it मोस्ट should be. ऑथेंटिक वे. Yeah. और आज दिन तक भी होता है कि जब नई बहू घर में आती है राजपूतों में, तो सबसे पहले डांस करती है. अच्छा, अभी भी. यस यस, So अभी वो भी बात करती है. ठीक थी मूवी की. यस यस यस. ही आस्क्ड मी कि क्या क्या ओकेजन्स होते हैं जब होते हैं. मैंने बताया गणगौर फेस्टिवल में होता है, ये सब कुछ है. मतलब जब नई बहू आती है उसको तो करना ही होता है. तो वो, एंड बिहाइंड दिस ऑल्सो राजेंद्र सर टोल्ड अस दैट ये तुम सोचो वो समय है जब इतने दूर दूर से लड़कियां शादी करके आ रही हैं. एंड राजपूतों में इंटर स्टेट मैरिजेस बहुत होती है. जैसे शी वॉज फ्रॉम राजस्थान, शी गॉट मैरिड टू गुजरात, इन गुजरात शी वॉज मैरिड इन गुजरात संतरामपुर. उनकी जो बहू है वो मध्य प्रदेश से आई है. तो ऐसे ही सब उनमें अलग अलग स्टेट के लोग आए हैं. अब जो नई बहू आई है, ऑफकोर्स उनके साथ, बिकॉज शी इज अ प्रिंस ऑफ सन प्लेस, तो उसके साथ 7, 8, 10, 12 मेज भी साथ में चलती थी. आज का समय अलग है, लेकिन वो जो समय था, उस समय जब आप पहुंचे हैं तो आपको पहली बात भाषा वहां की नहीं आती है. यू डोंट नो एनीबडी इंक्लूडिंग योर हस्बैंड, I यू know. डोंट नो एनीबडी. अब आप नए घर में आए हैं, हाउ विल यू ब्रेक द आइस. सो व्हेन यू आर डांसिंग, देयर आर नो इनहिबिशंस. सो एक तो जनाने में होता था, अंतःपुर में सारी महिलाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई होगा तो द हस्बैंड विल बी देयर, अदरवाइज नो. तो सबसे पहली चीज, जो लड़की है वो डांस करेगी. पहले वो नाच करती है, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द विमेन विल गैदर Join. टुगेदर, एंड देन इट बिकम्स, इट्स टेक अ शेप ऑफ घूमर. ये इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ ब्रेकिंग द आइस, Yeah. एंड एट द सेम टाइम आजकल की भाषा के हिसाब से जजिंग द न्यू ब्राइड कि हाउ हर नेचर इज, whether she's somebody who's very rigid, who will not listen and do what she wants to do, or somebody who will adapt to whatever is coming her way in this family.
How do we judge that? That when the group dance is happening, तो of course क्या होता है, एक जने ने हाथ movement change किया, everyone else will also change. जो rigid है will वो say नहीं I करेगा, will dance, my बाकी way. सब नाचे, वो मैं तो अपना ही. जो थोड़ा adjusting और ऐसे है, वो immediately जैसे हाथ change हुआ तो वो भी उस तरीके से नाचेगी. So you know ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन they are so beautiful, and people don't understand all these things, and people just give whatever name. जो एक प्रथा ये भी होती है ना कि बर्तन रखे हुए होते हैं जब आती है नई बहू, तो एक के अंदर एक बर्तन रखा जाता है, अगर बर्तनों की आवाज होती है तो कहते हैं ये लड़की बड़ी झगड़ालू हो गई. सब जगह की अलग अलग प्रथा है, बट द पॉइंट इज दिस कि इट्स नॉट दैट. बर्तनों की आवाज नहीं आएगी. आवाज कब नहीं आएगी? जब आप उसको पेशेंस हाँ, से रखेंगे, प्यार से पेशेंस प्यार से पेशेंस से रखेंगे. सो एक आप में कितना पेशेंस है इसकी जान, बिकॉज व्हेन इट इज अ बिग फैमिली you need a lot of patience. There are different relatives, different kind of relationships. आजकल तो हम दो लोगों में भी patience नहीं है. नहीं है. Wow, life is very different. And I personally feel there's nothing wrong in adjusting, because वो adjustment की cost is for your happiness in future, in your life, because peace of your mind is very very important. My mom always used to say, खुश रहना आना चाहिए. और अगर आपको खुश रहना आता है तो आप कहीं पर भी रह करके खुश रह सकते हैं. पर जिनका ये चिट किटकिट किटकिट करने का स्वभाव होता है ना, वो फिर उनको आप सब कुछ दे दो तो भी वो दुखी ही रहते हैं, क्योंकि उनको उनको हमेशा आधा ग्लास खाली दिखता है, आधा भरा हुआ वो नहीं दिखता है. So ऐसे सभी. So my experience was like really very good, very happy with that, the way it happened. And then I said, of course, Rajmata साहब must be happy somewhere कि मैंने ठीक किया, गलत नहीं किया, ज्यादा मिलावट कुछ नहीं होने दी. तो फिर उसके बाद the national award happened. yeah. How was that feeling, apart from the chaos that it came with? No, I mean like, to be very frank, वो है अवार्ड मिला है, बट उसका नेशनल अवार्ड मिला है ऐसा कुछ बड़ा कुछ दिमाग में गई नहीं बात. उस साल के तो सारे अवार्ड्स हम लोगों को मिले थे, कृति और मुझे, हम दोनों को मिले थे. कोरियोग्राफी के सब, फिल्म फेयर, आईफा, जी सिने, स्टार, सारे अवार्ड्स हमको मिले थे कोरियोग्राफी के. एंड जब नेशनल भी मिला तो आई वाज लाइक, अच्छा मिल गया. नाउ व्हाट? बिकॉज यू नो विद ऑल दिस कम्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो. Always. सो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, करते हैं, एनकरेज भी करते हैं, एट द सेम टाइम दे यू नो कुशन यू टू बिकम, कि आपके दिमाग में चढ़ जाए. बट थैंक्स टू माई अपब्रिंगिंग ऐसा कभी कुछ दिमाग में चढ़ा नहीं. और वाल घर में भी सबने अप्रिशिएट किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं, ओ ऐसा वाला कुछ भी नहीं हिसाब किताब. हाँ तुमने अच्छा काम किया, मिला है, गुड दैट यू गॉट रिकॉग्निशन फॉर दिस. Yes. नहीं भी होता तो भी क्या था. And to be very frank, it was not done to gain any fame, और इसके लिए मुझे ये करना है, ऐसा इंटेंशन शायद नहीं था. That is why it was, जब मिला तो it was like हाँ ठीक है मिल गया, चलो कुछ सही किया होगा. That's it. उसके बाद दोबारा कहीं वो नहीं करा, कोरियोग्राफी नहीं करी. नहीं, उसके दो कारण हैं. बिकॉज मेरा फोटे इज घूमर. घूमर. दूसरा, व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. वहाँ का आपको, यू हैव टू बी, आपको जब वहाँ पे काम करना तो आपका बैंडविड्थ एक अलग होना चाहिए. इवन राजस्थान से भी मुझे एक दो बार आया था कि कुछ करना है, लेकिन इवन आई न्यू कि जो मैं जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ में मैं यहाँ इस फिल्म में मैं कर पाई, राजस्थान की उन फिल्मों में मैं नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ एक अलग तरीके से प्रेजेंटेशन चल रहा है घूमर का. और वाइल पीपल व्हेन दे कम फॉर द वर्कशॉप, देयर आर टाइम्स व्हेन, राजस्थान में ही जब हम राजस्थान का ये चीज करवाते हैं, पीपल आर लाइक दिस कि हमने कभी ऐसे सोचा नहीं, हमने कभी इस चीज को ऐसे सीखा नहीं. दे अनफॉर्चुनेटली जो दो डांस फॉर्म है वो मिलके एक हो गए हैं. सो पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट नाच. नाच का फुटवर्क वो घूमर में करते हैं, और घूमर को नाच के जैसे नाच के कहते हैं ये घूमर है. सो इट्स बिकम लाइक ऑल खिचड़ी. खिचड़ी. सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि सेग्रीगेट करके दोनों डांस फॉर्म को रिकग्निशन दिलाई जाए. ये घूमर है और ये नाच है. जैसे गरबा है और रास है, ये दो अलग चीजें हैं, तो वो समझ में आना चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है. तो वही सब चीजें हैं. सो लाइक यू सेड कि फोक डांसेस जो हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में, फोक डांसेस काफ़ी
क्या बोलूं, फेमस नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है उनको. तो इन अ वे इज बॉलीवुड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और इज बॉलीवुड ट्राइंग टू रिवाइव देम ऑल्सो समटाइम लाइक संजय डिड? In a way, it was, I think, for your dance form, it was a very big thing because suddenly it became famous all around. Yeah. See, what happens is, mm, I cannot say that Bollywood is responsible for either, because Ghumar was there, existing, but it was not as famous as Garba Yes. या भांगड़ा. हाँ. उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहली बात ये हो जाती है कि राजस्थान में महिलाओं का सार्वजनिक स्थल पे, मतलब जैसे भी शोज वगैरह कुछ भी है, वहां पे जाकर के डांस करना इज नॉट अप्रिशिएटेड दैट मच. सो एक पर्टिकुलर तरीके के ही डांस फॉर्म्स ज्यादा बाहर जाया करते थे, जैसे कालबेलिया है, तेरा ताली है, जो चरी डांस भी होता है जिसमें मेटल पॉट होता है, उसमें आग जला के करते हैं. दैट वाज आल्सो राजमाता साहिबा ओनली एनकरेज्ड, मेड द वेरी फर्स्ट ग्रुप बैक इन 1960. अपने किशनगढ़ से उन्होंने बनवाया था. एंड देन शी सेंट कि नहीं, ये गुजर महिलाएं यहाँ की ये नृत्य करती हैं, ये ऐसा जाना चाहिए. सो why Garba and Bhangra became more famous faster, because there were people who could come and teach and tell what is right and wrong. घूमर इसलिए नहीं, घूमर अपने ही राज्य में डिस्टॉर्ट हो गया. क्यों? क्योंकि जो गलत कर रहे थे उनको करेक्ट करने वाला कोई नहीं था. राजमाता साहब हमको बताते थे कि गणगौर फेस्टिवल के टाइम में बहुत बड़ा साल की शुरुआत होता है, तो उस वक्त किले के दरवाजे खुलते थे फॉर एवरीवन. दैट वाज अ टाइम जब गणगौर की पूजा हो रही है, तो सारी महिलाएं वो गणगौर क्या होता है पहले थोड़ा सा? गणगौर जैसे नया साल की शुरुआत होती है ना, तो शिव और पार्वती की ईसर गणगौर बोलते हैं, तो उससे पूरे साल की शुरुआत होती है. तो उसमें क्या करते हैं कि पूजा होती है बाकायदा, कुछ 10 दिन का पूरा प्रोसेस होता है. तो वहां से साल की शुरुआत होती है राजस्थान के, और उसके बाद अंत होता है, जो साल अंत खत्म होता है वो होली पर होता है. तो होली इज द लास्ट डे, एंड उसके नेक्स्ट डे से गणगौर का पूरा एक फेस्टिवल शुरू होता है. तो उस दौरान जो है पूजा की जाती है, व्रत रखे जाते हैं, अच्छा पति मिले, या हमारे पति जो है उसकी अच्छी आयु हो, या ये सारी चीजें जैसे हर जगह होता है. तो उस वक्त एक वक्त के लिए किले के दरवाजे खुलते थे, तो उसमें सब ये जो आसपास के राज वगैरह है वहां की महिलाओं को इट वाज अलाउड टू कम एंड अटेंड द फेस्टिवल. बट 8 साल का से बड़े लड़का वाज नॉट अलाउड टू गेट इनसाइड द किला, क्योंकि वो जनाना लेडीज सेक्शन है. सो उस वक्त जो महिलाएं बैठी हुई हैं ऑडियंस में, दे आर सीइंग हाउ द प्रिंसेसेस एंड क्वींस आर डांसिंग, बिकॉज पूजा के बाद में देन दे विल गेट टुगेदर एंड दे विल डू घूमर एंड नाच. सो व्हेन यू आर विटनेसिंग समथिंग, तो डेफिनेटली यू वांट कि ये लोग ऐसे डांस करते हैं, वी शुड आल्सो डू इट. ये ह्यूमन नेचर है, वी ट्राई टू अडेप्ट टू व्हाटएवर इज समथिंग न्यू इज कमिंग. बट व्हेन यू आर डांसिंग विद देम, it's a different way of learning. And when you are watching them and then dancing later, so when you are dancing later, you will dance according to your capability of dancing, not necessarily you are dancing the right thing, but you will tell people मैंने देखा ना वो ऐसे करते हैं. now अगला जना यूं नाचा, but आपको यूं नहीं नाचा, आपने यूं किया, तो भी because you have seen it, rest of the people said हाँ वो यूं बोले तो हम भी यूं ही करेंगे, इसने तो देखा है. so that is why that dance form became more and more famous and accepted and adapted by rest of the castes also. जैसे गुर्जर महिलाएं हैं, उनका चरी नृत्य होता है, जो कामड़ जाति होती है, जो मटका वगैरह सब बनाते हैं, वो लोग तेरा ताली करते हैं. तो हर जाति विशेष का अपना अलग डांस होता है, लेकिन डांस फॉर्म्स है हमारे, बहुत हैं. एंड इवन यू नो, वंस आई व्हेन आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन दैट दे सेड दैट यू नो, हर जगह, नॉट जस्ट राजस्थान बट हर स्टेट में एक जैसा खाना जहां होता है ना, वहां के लोगों का कल्चर इज डिफरेंट देन सेम स्टेट के दूसरी तरीके का खाना. जैसे राजस्थान में कहीं बाजरा ज्यादा होता है, कहीं पे ज्वार ज्यादा होता है, तो एक जैसा जो लोग खाते हैं ना, उन लोगों की बोली, उन लोगों का रहन सहन और सब कुछ एक तरीके का होता है, आर्ट एंड कल्चर, तो उन लोगों का अलग होता है. वाई? बिकॉज देयर जियोग्राफिकल कंडीशंस आर डिफरेंट. बिकॉज जहाँ गेहूं होगा वहां पानी ज्यादा लगेगा, जहाँ ज्वार होगा या बाजरा होगा वहां पे, जहाँ बाजरा होता है वहां पे कम पानी होता है, तो वहां जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज हो गई, तो उनका रहन सहन, बोल चाल, पहनावा, खाना पीना, डांस, एवरीथिंग चेंजेस. देन द
गेहूं वाला क्षेत्र. सो ये चीजें जो है ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड. एंड देन वो लोग अगर कोई गलत भी नाचे तो नो राजपूत women came out and said that तुम जो कर रहे हो वो गलत है. Then the dance was not happening. Source of the reason for dancing changed. पहले क्या होता था, घर में परिवार में सब लोग हैं, कुछ भी फेस्टिवल है, एवरीबडी इज गैदरिंग टुगेदर एंड डांसिंग. अब ये हो गया कि अब वो फेस्टिविटी उस तरीके से उतने लंबे चौड़े हिसाब से हो ही नहीं रही है. इंडिपेंडेंस आ गई, रजवाड़े खत्म हो गए, पर्स भी चला गया, एवरीथिंग बिकेम स्मॉल. देन टीवी, रेडियो आया, टीवी आया, सब कुछ आया, तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चेंज्ड. सो व्हेन एनीबडी इज रिलैक्सिंग एंड डांसिंग, जो पहले ये होता था, इट बिकेम दैट रेडियो सुन लो उस वक्त, टीवी देख लो उस वक्त. So, जो ट्रेडिशनल चीजें थी जो ज्यादा हुआ करती थी, वो दैट बिकेम वेरी स्मॉल. शादी के वक्त कर लिया, या कभी कोई फेस्टिवल है बड़ा, उस वक्त थोड़ा कर लिया. और उस वक्त जो नाचे, तब क्योंकि टीवी के कारण हम लोग, ग्लोबलाइजेशन हुआ, सो देन अरे दादी तुझे कुछ नहीं आता, मुझे आता है. वी स्टार्टेड शनिंग देम. तुम मत नाचो, वी नो. देन डेफिनेटली फिल्म्स भी का भी प्रभाव पड़ा. वहां का डांसिंग स्टाइल अलग है. इट इज नॉट जस्ट द घूमर, बट जो डांस अदरवाइज फोक के नाम पे वो लोग कर रहे हैं, everything was changing. So adaptivity, change is inevitable. वो तो आएगा ही आएगा. So ऐसे सब change तो होना शुरू हुआ, but there was no correction. And when Rajmata saw this, she said कि किसी को तो करेक्ट करना पड़ेगा, किसी को तो बताना पड़ेगा कि जो आप घूमर कर रहे हैं वो घूमर नहीं है, वो नाच है एक्चुअली, एंड वो भी आप गलत कर रहे हैं, है ना. अब जब नाचते हैं लोग तो वो यूं नाचते हैं, मतलब जो पाँव की ठमक होती है वो यूं नाचने की नहीं होती, वो एक्चुअली यूं नाचते हैं. रेतीली जगह है अब, क्योंकि जो फ्लोरिंग है वो टफ हो गई है, नोबडी इज करेक्टिंग देम, सो एनीबडी इज डांसिंग द वे वांट टू. अब तो महिलाएं नहीं, अब तो पुरुष भी घूमर सिखाते हैं. सो शी यूज्ड टू लाफ एंड शी यूज्ड टू से कि लो हमारा डांस है, अब हमको पुरुष सिखा रहे हैं कि हमको कैसे नाचना है. और डेफिनेटली आई एम लाइक, ठीक है आप डांस कीजिए, बट लोग कहते हैं कि मैम क्या है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही हो रहा है, एवरीबडी इज सीइंग देम, यही ट्रेंड कर रहा है. ट्रेंड कोई भी चीज कैसे हो सकती है? when we are watching it again and again. If you do not approve of it, don't watch, don't share, whether that is my dance or any XYZ का डांस. पर आप क्योंकि वो चीज ट्रेंड कर रही है, एवरीबडी वो कर रहा है, तो सब गड्ढे में गिर रहे हैं, हम भी गड्ढे में गिर रहे हैं. सो यू नो ये जो सारी चीजें हैं, सो आई विल नॉट ब्लेम बॉलीवुड for whatever is happening. We are also responsible. It is our duty also. वो कहीं ना कहीं से अडेप्ट करती रहती है. जैसे एक बहुत पुरानी फिल्म थी रेशमा और शेरा, उसके गाने सुने हैं, उसमें देखो कितने ट्रेडिशनल कपड़े उन्होंने पहनाए हैं उन लोगों को. एट द सेम टाइम एक फिल्म उस मूवी में उन्होंने एक्चुअली उस कंडीशन में रहे थे, वो लोग रहे थे, उस तरीके से रहे, कोई लटका झटका कुछ भी नहीं, कितनी सिंपली तरीके से उन्होंने वहां का सब कुछ बताया. वैसे एक फिल्म थी सरस्वती चंद्र, उसका गाना कितना फेमस है, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, उसमें गरबा कर रहे हैं, कितना अच्छे से कर रहे हैं वो लोग, ऑथेंटिक स्टाइल से कर रहे हैं. तो वो जिन्होंने करवाया है, जो करवाना चाहते थे, उन्होंने वो भी करवाया. पर जिनको लगा कि नहीं लोग शायद पसंद नहीं करेंगे, हम इसमें तड़का थोड़ा ज्यादा डाल दें, तो वो भी चीजें हुई हैं. तो सब तरीके की चीजें आई हैं. इन द एंड इट इज जस्ट दिस दैट acceptance by the audience is very important, and that can only come with your conviction. If you are sure that जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ लोग इसको पसंद करेंगे, और आप उस चीज में पूरा फोकस करके उस चीज को उतनी ही ऑथेंटिसिटी से प्रेजेंट करेंगे, तो वो चीज अच्छी बन के आएगी ही. सही बात है. Like when Sanjay was doing that, I told him कि जो ओढ़ना आप पहनाएंगे वो उतना छोटा नहीं होता है. राजस्थान में जैसे जो साड़ी का एक विड्थ होती है, उसमें आधा और लगता है. उसका सिंपल रीजन ये है कि जब वो घूंघट खींच रहे हैं, अगर साड़ी विड्थ वाली है, घूंघट हमने आगे खींच लिया, तो पीछे की बैक साइड पूरी खुल जाती है. दैट शुड नॉट बी डन, इट इज इनडिसेंट. सो इसलिए वो लोग 1.5 पार्ट बोलते हैं, मतलब एक साड़ी का पना उसमें आधा और. तो जब अगर आगे घूंघट भी खींच लिया तो बैक साइड आपकी ओपन नहीं होती. तो इस चीज का देन उन्होंने अपने जो ओढ़ने बनवाए इसमें पद्मावत में, सब वो मोस्ट ऑफ देम आर 1.5 पार्ट का ओढ़ना. तो उनको बैक डांसर्स को भी जो ओढ़ना पहनाया, मैंने पहनाया था, दीपिका ऑल्सो, आई यूज्ड टू ड्रेप हर ओढ़ना. सो यू नो it is there. Those who want to do it will do it any which ways. So we can't blame any source, but definitely we should blame ourselves, because we don't want to do our homework. We just want to do what is trending, and जो famous हो गया उसके पीछे हम भाग लेते हैं.
So homework is important. अच्छा, एक और वी हैव स्पोकन अबाउट द हिडन नाम वाला जो ट्रेडिशन था इनका. हाँ, वो ना जब हमको घूमर भी जो है ना, मारवाड़ की घूमर अलग होती है और मेवाड़ की घूमर अलग होती है. Okay. मेवाड़ इसमें भी इज types क्लोजर, हैं. यस, मेवाड़ इज क्लोजर टू गुजरात. तो Okay. उसमें जो रिदम बजता है ना, इट इज वेरी सिमिलर टू गुजरात के गरबे का रिदम. वो आ ही जाता है ना, खाने Naturally. वगैरह, बोली वगैरह, सब चीज में. इन्फ्लुएंस तो होता ही है एक यस. दूसरे का. सो राजवंत साहब ने हमको बताया उनकी दादी उदयपुर से थे. ऑफ कोर्स शी हैड नेवर मेट हर दादी, बट होता है ना कि उनका स्टाफ वगैरह सब तो रहता ही है. और क्योंकि इट वाज देयर इन हर फैमिली एंड देन दे वर वुमेन एंड कल्चरली और ज्यादा एजुकेशन मिला उनको उस चीज के बारे में. तो शी जस्ट टोल्ड अस दैट उदयपुर में आज भी जब राजपूत फैमिलीज में महिलाएं जब डांस करती हैं तो वो ओढ़ना ना यूं आता है राजस्थान में ऐसे, और ये पूरा इस तरफ से ऐसे संभालते हैं. लेकिन जो उदयपुर में जब डांस करते हैं तो इस साइड का पल्लू वो यूं खोल देते हैं एंड दे होल्ड द पल्लू लाइक दिस एंड देन दे डांस. सो हमारी भी कुछ घूमरें हैं विच शी यूज्ड टू, राजवंत साहब यूज्ड टू वाज वेरी पर्टिकुलर. घूमर के गानों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए. जब तक तुम गानों को अंदर महसूस नहीं करोगे ना, उस यू स्टेप से नहीं कर नहीं सकते कर वो सकते. दिखेगा बिकॉज नहीं. घूमर और नाच में आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ नहीं होते हैं. हाँ, यू एक्सप्रेस थ्रू योर, बिकॉज फेस छुपा हुआ है. यस, और यू एक्सप्रेस थ्रू योर आर्म्स. सो आपकी जो रिस्ट है, रिस्ट का काम बहुत होता है. और तब चाहे हम लोग लाडू ही बनाना है ऐसे भी नहीं कर सकते, एज वेरी जेंटल. तो शी से कि जिस लड़की को बचपन से सिखाया ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे बातचीत करो, कंट्रोल्ड वे में रह रही, वो डांस करते ही धमाधम थोड़ी नाचेगी, वो वैसे उतने ही डिसिप्लिन से वो डांस भी करेगी. तो ये सारी चीजें वन मस्ट अंडरस्टैंड. तो जो यहाँ पे महाराणा प्रताप के टाइम में जब इतना युद्ध लंबा चला, तो फंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो उनको पता था कि हमारी लिमिटेड सेना है, तो हम खुले में तो युद्ध नहीं लड़ सकते. तो छापामार युद्ध होता था, वो पहाड़ों से ही लड़ते थे. और यहाँ से मुगल पहाड़ों में नहीं जा सक पाते थे क्योंकि दे डिडंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. तो लेकिन आपके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन कहाँ से आएगा? तो उसके लिए एक भीमा शाह थे, ही वाज अ बिजनेस पर्सन. वो युद्ध भी लड़े थे और उन्होंने अपना खजाना खोल दिया था महाराणा प्रताप के लिए कि आपको जितनी जरूरत है आपको मैं मदद करूंगा. बट एट द सेम टाइम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द क्वींस, द राजपूत वुमेन ऑफ द Yeah. फैमिली, दे सेड आप हमारी ज्वेलरी ले लीजिए. अब ज्वेलरी तो उस समय की तो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अगर सारी ज्वेलरी वहां दे दी एंड इफ द क्वींस एंड प्रिंसेसेस आर नॉट वेयरिंग ज्वेलरी, तो जो स्टाफ है, जो प्रजा है, वो सोचेगी कि माने हमारे राजा के इतने बुरे दिन आ गए हैं. तो व्हाट दे डिड इज वो खाली एक साइड का ज्वेलरी पहनते थे. जैसे एक कान में पहन लिया, एक चूड़ा पहन लिया, एक बाजू पहन लिया, यहाँ पे इस साइड का पूरा, क्योंकि ये खुली साइड होती थी, इस साइड की पूरी नहीं पहनते थे क्योंकि एक एक सेट दो दो लोगों ने बांट लिया है. अब जब डांस कर रहे हैं या कहीं पूजा वगैरह कहीं भी जाए, तो वो हाउ व्हाट डू, यू कवर योर हैंड when you are dancing and when you are doing anything. So this is how, just see, it was their sacrifice, it was This is their way of contributing contributing to in the whole thing, the to war. the war and supporting their husband. So while people say कि अरे रानी महारानियों की तो जिंदगी ऐसे नहीं, नहीं they have थी. lived a very tough life. आपके आसान नहीं होता है कि अपने पति को आप टीका करके भेजो कि पता नहीं है वो वापस आएंगे वापस भी कि आएगा नहीं. नहीं. तब तो कोई मीन्स भी नहीं होते थे ना, महीनों बाद बिल्कुल, कुछ पता चलती होंगी बिल्कुल. उनको वो news. हमारे गानों से, जो घूमर के कितने ही गाने उससे पता चला. वो और वो कल्चर भी ऐसा नहीं था कि आप करो फोन उठा के या किसी को कोई जाओ जाओ पूछ के मेरा पति क्या है. तो गाने हैं, जरा एक गाना है घूमर का, सेनारा बायरिया धीमो मंदरो बाज. पति चला गया है युद्ध पे, तो अब वो अपना मैसेंजर किसको बना रही है? जो हवा है, बायरिया है, वो उसको अपना मैसेंजर बनाती है. वो कहती है कि जाकर के देखो. और फिर वो गाने में पूरे अंतरे में ऐसी है कि वो उस तरफ से जिस दिशा में मेरे पति गए हैं, उस तरफ से जो हवा आ रही है वो बहुत ठंडी शीतल आ रही है. सो there are so many songs when you listen to them. And since Rajmata Sahiba, she made it sure कि आपको गानों का अर्थ पता होना चाहिए. So till date when we conduct our workshops, we make sure that whoever is coming, we give them the song, we make them sit and sing the song, we tell them the meaning of the song. तो जहां हमने वो गाने सुने हमको पता चल जाता उस वक्त की जो महिलाएं थी उनका जीवन क्या था. तो they have lived a tough life. Yeah. और वो तो राजा तो युद्ध के लिए चला गया,
पर पीछे जो बच्चा है उसको तो आप ही समझा रही है ना कि अपनी प्रजा के लिए तुमको अपनी जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारी जान हमारी नहीं, तुम्हारी जान तुम्हारी प्रजा की है, उनके लिए तुम लड़ोगे मरोगे। सो ये कौन सिखा रहा है? उसकी माँ ही तो सिखा रही है। सो भाई, they were like, and not only them, even the other women were also very Yeah. strong. Yeah. Those were tough days. जैसे जो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, हमने सबने ही सुनी है वो, क्यों मारवाड़ी गया, उस 12-12 साल बाद लौटा, कितनी बार तो वो लौटे ही नहीं, लौटे नहीं उन्होंने थे। वहीं पर बना लिया घर, अपनी वहीं गृहस्थी बस गई। या कितनी बार ऐसे हो कि जब रास्ते में जा रहे हैं डाकुओं ने उनको लूट लिया, मार लिया, खत्म। पर उनकी पत्नी तो है, वो अपने सास ससुर की अभी भी उतनी वैसे सेवा करेगी, उसी तरीके से रहेगी, उसी तरीके से जीवन जिएगी। तो we have become so thankless to what we have now, that पहली बात, हम अपनी कल्चर से जुड़ना नहीं चाहते हैं। यू नो और कल्चर में सिर्फ हमारा रीति रिवाज नहीं आता है, हमारा खान पान भी आता है। जो हमारी रोटी सब्जी दाल चावल हर जने का, जैसे जो बेस्ट ऑफ द डाइटिशियंस हैं वो कहते हैं, ईट व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स Of एट। course, of एंड इट course. इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारा डीएनए वही है। अब वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर द यंगेस्ट कंट्री। यहाँ की जो हमारी जनरेशन है, इतना यंग पावर है, दे आर ऑल बिजी गोइंग थ्रू द रील्स, ईटिंग जंक, एंड डायबिटीज का हब बन गए हैं हम लोग। So सो it's a diabetes capital I of am the a, world. I personally feel that it's a conspiracy कि आप इन लोगों को इतना फिजिकली भी ऐसे डीमोरली उनको डीमोरलाइज Demotivate कर करो। दो, उनका खाने पीने के, उनको हेल्थ इश्यूज इतने सारे दे दो। एंड it's good to be woke, it's good to be asking questions, but सवाल पूछने से पहले आप अपने सवाल का होमवर्क करके अच्छे से आओ। जस्ट ऐसे तड़ाक तड़ाक उल्टे जवाब और जोर जोर से बोलना, एंड वो आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो दिस इज माय लाइफ, दिस इज माय बॉडी, दिस आई एवरीथिंग वी अप्रिशिएट दैट, वी अग्री टू दैट, बट आपका अपना होमवर्क कहाँ है? डू यू नो कि आप आज ये इतना खड़े होकर के बोल पा रहे हैं, उसके लिए कितने लोगों ने मेहनत की थी? हमारा योगासन बाहर जाके योगा बन के आ I गया। know, अब हम फॉलो अभी कर तो रहे हैं। हाँ, अभी तो आयुर्वेद भी आयुर्वेदा बन के पहुंच रहा है हमारे पास। फिर हम वो लोग वो भी करेंगे। तो वी नीड टू, अब सारी जो है वो ग्लोबली पहचानी जा रही है, तो अब लोग हैं, अब यहाँ के जो लोग हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने पहले बरसों पहले स्टिच्ड नववारी देखी। आई वाज लाइक, अरे लोग नववारी पहनना भूल जाएंगे। अब साड़ियां भी आ गई स्टिच, पहले स्टिच साड़ी ने, अब तो ब्लाउज भी उसके साथ सिलावा आ रहा है। माने कितने आलसी हो गए हम भाई। हमारे पास मिक्सी आ गई, अवन आ गया, माइक्रोवेव आ गया, मेड्स आ गया, रेडी टू मेक ग्रेवीज आ गई, उसके बावजूद हमारे पास टाइम नहीं है। बोलो तो कहाँ जा रहा है? 24 घंटे तो यही थे जो पहले भी थे, एंड दे डिड सो मच। एंड मैं दूसरों को नहीं बोल रही, मैं अपने आप से भी सवाल पूछती हूँ। माई मदर यूज्ड टू डू सो मच वर्क, आई डोंट थिंक आई एम इवन डूइंग हाफ ऑफ दैट। टाइम कहाँ जा रहा है नहीं पता। आई थिंक ज्यादा टाइम तो रील्स देखने में जाता है। वो प्रॉब्लम है, फोन हाथ में आने के बाद ना वो टाइम कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। सो बुक लेकर के हाँ ये पढ़ना है, लेकिन इसको कम से कम आधा घंटा तो मैं पढ़ूं। बाद में रील देखने बैठते, रील 1.5 घंटे आपने देख ली, उससे अच्छा आधा घंटा बुक पढ़ लेते आप। सो आई ऑलवेज टेल whoever comes to our workshop also, in general भी जब बात होती है, doing your own homework, doing your own research is very good. चैट जीपीटी से नहीं, अपनी बुक पढ़ी जाए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गूगल में भी वही है जो हमने लिख करके डाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने इतनी मेहनत करके नहीं उसका क्या करोगे? तो जिन्होंने इतनी रिसर्च करके बुक्स बनाई हैं, whether it is singing है या dancing है या food है, any topic, we should be in gratitude for those people, their efforts, and we should read their work. तो getting back to your roots is very important, very very important. So नहीं, अब थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट मुझे लगता है अब जो जनरेशन आ रही है, एटलीस्ट स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। वो कितना जैसे होमवर्क कितना करे पता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग शुरू हो गई है उनका कि क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ना, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ जागरूकता जिसे कहते हैं ना, थोड़ा हो रहा है, सो व्हिच इज गुड। एंड हमको बच्चों के साथ में कंप्लेन करें उससे ज्यादा हमको पेरेंट्स के साथ में कंप्लेन करनी चाहिए। जस्ट टाइम पेरेंट्स शुड बी सिखाने वाले पेरेंट्स होते हैं। यस, कितनी बार होता है लोग कहते हैं मैम व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द किड्स, मैं कहते हैं बच्चे ने उनके पेरेंट्स को लेकर के आई वुड लाइक टू टॉक टू देम, क्योंकि जो एक
8 साल का बच्चा डांस कर रहा है, रील बना रहा है, दनादन रील बना रहा है, डांसेस कर का, जिन मूवमेंट का उन लड़कियों को मतलब भी नहीं पता है या लड़कों को भी नहीं पता है, वो खुद नहीं कर रहा है, उसके पेरेंट्स आर मेकिंग अ इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर देम। एंड इट इज सो सैड दैट छोटी छोटी बच्चियों को आप टिप टिप बरसा पानी और पता नहीं कैसे कैसे गानों में, वैसे ही जो हीरोइन, जो एक 25-26 साल की हीरोइन जैसे स्टेप्स करिए, वैसे स्टेप्स आप अपने 7-8 साल की लड़की से करवा रहे हैं। आजकल तो जो शोज भी आते हैं डांस शोज, दे आर डांस शोज कम है, एक्रोबैटिक्स ज्यादा है। और मुझे घोर आपत्ति है कि आप विदेशों का डांस जो है, जो हिप हॉप है या बॉलीहॉप है, बॉलीहॉप तो खैर ये बॉलीवुड के साथ मिक्स हो गया, पर जैसे एफ्रो है, दूसरे और भी सारे डांसेस है, अब दूसरी जगहों का फोक डांस आप यहाँ करवा रहे हैं, उसका कंपटीशन, आपके अपने अपने फोक का फोक क्या डांस हुआ? करना। देन दे, अरे कोई नहीं देखना चाहता है मैम, सबको वही चाहिए होता है बॉलीवुड। जो देखेगा वो आप जो दिखाएंगे लोग वो वही देखेंगे देखेंगे। ना, राइट। जब दिखाई नहीं रहे हो तो यस, फिर अब बिकता वही है जो आप बेचने के लिए काउंटर पे लगाएंगे, जो आपने काउंटर पे लगाया नहीं उसको मांगने के लिए कौन आएगा? सिंपल सी बात है। ट्रेंड वही करता है, आपको एल्गोरिदम में आ गया, आप जो देख रहे हैं वही आपको बार बार दिखाएगा एल्गोरिदम भी। तो आप जब आपको सिखाना शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से तो वेरी फ्रेंकली, मेरे हिसाब से तो हर स्टेट में उस स्टेट का जो फोक है दैट शुड बी टॉट टू द किड्स इन स्कूल, नॉट एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बट एज अ सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट। जिसके मार्क्स उनके उसमें भी जुड़ने चाहिए, जो 10th का पेपर है या एग्जाम का जो भी कुछ भी है, हमको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे हमारे कितने बरसों हजारों साल पुरानी सभ्यता है, नहीं तो धीरे धीरे ऐसे खत्म मे हो बी गिवन अ जाएगी। चॉइस टू देम, मतलब म्यूजिक करना है, डांस सीखना है, या जो भी सीखना है, एक चीज या जो कल्चरली रूटेड है ना, वो there सिखानी are चाहिए। people, the kids say, nowadays people, parents should understand, ma'am, they should understand, they cannot dictate terms ना। तो एक बार मैंने किसी ने बहुत मुझे ज्ञान दिया, मैंने कहा एक काम करो बेटा, तुम तो भारत में गलत जगह पैदा हो गए, चाइना में पैदा होना चाहिए था तुमको। वहां पर तो पेरेंट्स डिसाइड बच्चा कौन सी क्लास, मतलब क्या पढ़ेगा, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या सीखेगा, कौन से सब्जेक्ट लेगा, कौन से जॉब करेगा, इट इज द पेरेंट हु टेक्स अ डिसीजन। व्हाट इज इट ट्रू? मैंने कहा होमवर्क करो, खोलो, ओपन योर फोन। ओ माय गॉड, मैंने कहा यस, जाने जाओ ना, नहीं पसंद है वहां जाओ। आपको फ्रीडम चाहिए तो, लेकिन किस चीज की? आर यू केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट फ्रीडम? या उसके लिए पहले केपेबल तो बनो। फ्रीडम जिम्मेदारी के साथ में आती है, बिल्कुल। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। आपने गुजराती गाना गाया हुआ है, हाँ, बॉलीवुड में भी गाने गाया हुआ है, नहीं गाया नहीं है पर वो गाना करवाया हुआ है। गाना करवाया हुआ है, तो व्हाई डोंट यू सिंग एनी सॉन्ग दैट यू लाइक, अयो, जो अच्छा लगता है आपको? हाँ, मैं राजस्थानी ही गाती हूँ। बिल्कुल, अम, पर मतलब सुनाना पड़ेगा हमको साथ में। श्रृंगार रस का गाना है, ओके। और उसमें जो नायिका है वो कह रही है कि मेरी जो पायल की आवाज है, शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट, कि वो उनसे अपने पति को मिलने के लिए जा रही है, तो उसकी पायल की आवाज किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। ओके, तो सरप्राइज हो सके ताकि। हाँ, नहीं, और कि सबको पता चल जाएगा कि मैं उनको मिलने के लिए जा रही हूँ, तो ओके। एक वो जो थोड़ी सी शर्म है, थोड़ा जो लिहाज है, हर समय का अलग अलग रहता है। तो वो कहती है पायल गहरी बाजनी, रसीलो तो महिला आए, मतलब जब वो आएंगे तो मैं जाऊंगी तो मेरी पायल की आवाज भी काफी गहरी हो जाएगी। और फिर वो कहती है कि जब वो आएंगे तो ढोला जो आएंगे वो पोड़ेंगे, मतलब जब वो लेटेंगे तो मैं उनको ठंडा ठंडा पंखा झेलूंगी। तो प्रेम की अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से है। सो हमारे जो सिंगर थे हमारे साथ गाते थे, लाखा जी, पद्मश्री हैं वो, तो उन्होंने सिखाया था मुझे। ही न्यू कि आई एम नॉट अ सिंगर, इसलिए उन्होंने पक्का से रियाज करवा करवा के सिखाया। सो पायल गहरी बाजनी, रसिलो महलो आया, पायल गहरी बाजनी, आवो जे ढोला पोड़ लो थारे, मरवण झेल ठंडो पाख हाँ। तो ये पूरा गाना ऐसे ही चलता है। वो फिर और आगे अलग बात करती कि आप आएंगे तो मैं आपको इस तरीके से भोजन परोसूंगी, ऐसे करूंगी। सो दैट्स हाउ इट इज। सो इट्स फन कि जब आप इन कलाकारों के साथ में जुड़ते हैं, बैठते हैं,
सो उनके पास तो ढेर पिटारा है ज्ञान का, एंड दे डू सच वंडरफुल वर्क, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं. बट अगेन आई विल गो बैक टू दिस दैट इनको जो है, जो राजघराने हुआ करते थे वही इनको जागीरें दे करके रखते थे और सब कुछ था. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जब राजे रजवाड़े भी खत्म हो गए तो इन लोगों के लिए भी कुछ बचा नहीं, धीरे धीरे ये भी सारा खत्म होने लग गया. तो बैक इन 1960 65 या ऐसी कुछ जोधपुर में एक थे कोमल कोठारी जी, उन्होंने शुरू किया कि उन्होंने ये जो कलाकार होते थे इन लोगों को रिवाइव करना शुरू किया. उन्होंने बहुत रिसर्च का काम किया. उनको पहले पद्मश्री मिला था, एंड आई थिंक 2004 में उनको पद्म भूषण भी मिला था इसी काम के लिए. उन्होंने ये काम नहीं किया होता ना तो अर्चना, ये जो लंगा मांगनियाज आज हम देखते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं. एंड ही वाज सो स्ट्रिक्ट, ही यूज्ड टू बी वेरी क्लियर दैट आप आ रहे हैं गाने के लिए, हारमोनियम नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि हारमोनियम इज नॉट इंडियन इंस्ट्रूमेंट, इट्स यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट. तो राजस्थान में हारमोनियम तो बहुत बाद में आया. ट्रेडिशनली सारंगी चलता है, कमाईचा चलता है, रावण हत्ता चलता है, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं. उसके मैंने अलावा नाम भी नहीं सुने हुए उनके, जब भी आपने बोले सिर्फ सारंगी पता है मुझे, बाकी हाँ, नहीं पता. अब कमाईचा सारंगी के जैसा ही होता है लेकिन उसका शेप थोड़ा अलग होता है. सारंगी जैसे नीचे से भी ऐसे होता है, कमाईचा नीचे से ऐसे गोल होता है. ओके. इट इज सो सैड कि कमाईचा बजाने वाले 5 या 7 अच्छे कलाकार रह गए हैं राजस्थान में, सोचो. बिकॉज नोबडी, मैं तो हमारे वर्कशॉप में हमारे तो लाइव म्यूजिशियंस चलते हैं, लाइव म्यूजिक पे ही हम डांस करवाते हैं. एंड इन एवरी वर्कशॉप आई टेल एवरीवन दैट आप लोग रिकॉर्डेड म्यूजिक में आपका संगीत करवाते हैं, दुनिया भर का इतना डेकोरेशन सब डीजे के लिए, उससे अच्छा म्यूजिशियंस को बुलाइए. अदरवाइज वो भी तो उनके, इट्स देयर ब्रेड एंड बटर, या खत्म हो जाएगा नहीं तो धीरे धीरे. सो लेट्स सी, बट इट्स अ वर्क, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कल्चर ऑल्सो. आई नो, आई नो. वैसे कभी एक टाइम था कुछ 15-20 साल पहले, मुझे लगता था ये सारा ना जो ये कल्चरल चीजें, डांस एंड म्यूजिक खत्म हो जाएगा, बट अभी भी चल रहा है. तो चल आई रहा है. थिंक वो संभाल लेंगे, हाँ, संभालने वो वाले लोग हैं जो संभाल चलते लेंगे. चलता रहेगा, हाँ. लेकिन ये है कि जो उसका ओरिजिनल स्वभाव है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसके साथ में चलता रहे तो ज्यादा अच्छा है. ज्यादा अच्छा. लोग हैं, बच्चे अभी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ बात क्या है पता है? वो 1 क्लास करेंगे, 2 क्लास करेंगे, एंड तीसरी क्लास में वो दिखते नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रील बनाने लग गए हैं और ऑलरेडी सिखाने लग गए हैं. सो देर इज अ सेइंग इन हिंदी कि अधजल गगरी छलकत जाए. जो भरा हुआ मटका होता है उसमें से उतना पानी नहीं गिरता है जितना आधी भरे आधी भरे हुए से होता है. गगरी में से गिरता है. हाँ. तो हमको पहले जो पेशेंस एक होता था ना, कि हम पहले सीखते थे हाँ. और समझते थे और फिर सिखाते थे. आज हम पहले डरते थे कि क्या आर वी केपेबल इनफ टू टीच. आज तो 1 क्लास के बाद ही लोगों में फुल कॉन्फिडेंस है कि दे कैन रन द क्लास एंड दे कैन टीच एवरीबॉडी. फिर तो क्या है, अभी एक मैंने वर्कशॉप किया था तो उसमें कुछ लोग आए थे, तो एक लड़की ने, मैम मैं भी राजस्थानी करती हूँ. मैंने कहा वेरी गुड, किससे सीख रही हो? रील्स से सीख रही हूँ. तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सीखो बेटा. आप क्या कर सकते हैं? आप समझा सकते हैं, आप रिपीटेड बता सकते हैं. समझना नहीं समझना, दैट इज दूसरे जने की दूसरे क्षमता ऊपर है. है. हम समझाने का काम कर रहे हैं, समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो हम तो समझाते ही रहेंगे. आई नो. चलो, लाइक इस हमारे शो में ना रैपिड फायर राउंड खेलते हैं. अयो. करण जोहर से कॉपी कर, कोई बात नहीं. क्योंकि संजय लीला बंसाली हो गए, शाहरुख खान की भी बात होगी, तो अब करण जौहर भी आ गए. अच्छा, ये आपने बताया था कि सिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा था आपको, है ना? हाँ. इफ शी हैड नॉट मेड दैट इंट्रोडक्शन, तो आज आप क्या कर रहे होते इफ यू लुक बैक? शायद आई वुड हैव बीन जस्ट अ होम मेकर एंड बच्चों को कूट रही होती अपने. या आई वुड हैव बीन डूइंग वर्क फॉर सोसाइटी, टेलिंग देम ये सही है, ये गलत है. पुलिस वाली बात. मे या आपने कथक भी सीखा है, घूमर भी सीखा है. व्हाट इज योर फेवरेट डांस फॉर्म? घूमर. लच्छू महाराज जी ने बहुत पहले एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कथक जो है वो घूमर से निकला. अब इस पे रिसर्च कहीं पर हुआ नहीं है, बट आई हैड हर्ड दैट. सो राजवंत साहब आल्सो टोल्ड अस. अब किसी की रिसर्च मैं ढूंढती रहती हूँ पर अभी तक मुझे कुछ मिला कोई नहीं है. इसको, हाँ, तो घूमर डेफिनेटली.
One dance move घूमर में जो आपको लगता है you have not perfected till date? ओ बहुत सारे हैं. बहुत सारे हैं. यू राजमाता सागत आप ऐसे 5 सेकंड का भी देखोगे ना, you'll be like ज्योति you are nothing. It happened, you know, like in एक दिन मुझे दीपिका said that I want to see how your guru danced. I said we don't have much of her recordings but I'll see. So हमारे पास एक recording है जो हम उनकी documentary में भी बताते हैं. So मैं वो record करके लेके गई and she was so mesmerized. She said ये कितना बढ़िया डांस करते हैं. And she was 63 when she was dancing. So she said, "Sir, आपने देखा क्या?" तो संजय walked and he said, "क्या?" ये देखिए इनकी गुरु तो he just saw 4 seconds भी नहीं होते. He just put the phone down. ज्योति, you are nothing in front of her. मैंने कहा आप उनका और मेरा नाम इकट्ठा ले भी नहीं सकते. Exactly. She was so graceful. So आज भी जब मैं डांस कर रही होती हूँ, I just think of her and dance, but I don't think I can dance like her. I don't think so. बहुत सारा है जो उनके जैसा मैं नहीं कर सकती हूँ. So when you teach घूमर, are you teaching her or you teaching घूमर? ऐसे दिमाग में आई है. नहीं, she's घूमर for me. She's घूमर. अच्छा, if Sanjay Leela Bhansali calls you tomorrow again for anything, which actress would you want to choreograph the song on? Tough question. I think Madhuri Dixit. Madhuri Dixit. She's a good dancer. I know she is. अच्छा, क्योंकि खाने की बात करनी पड़ती लव फूड एंड फिटनेस पे, तो डांस रिहर्सल पे विच इज योर फेवरेट स्नैक? एक्चुअली मैं चाय पी के खुश रह जाती हूँ क्योंकि खाना खाने से ना थोड़ा ऐसे हेवीनेस हो जाता है, डांस नहीं कर सकते. फिर हाँ, तो चाय आ जाती है, उसी में खुश हो जाता है. चाय के साथ में अगर रस टोस्ट आ जाता है तो नथिंग लाइक इट. पर जब एक बार क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद तो आने दो कुछ भी आ जाए. हाँ, बट व्हेन आई गो टू राजस्थान आई लव टू हैव केर सांगरी. दैट्स मेरे घर में हमेशा उसका अचार तो मिलेगा ही मिलेगा. लहसुन की चटनी जो राजस्थानी स्टाइल की होती है. गट्टे का साग मुझे पसंद है, लेकिन उसमें से गट्टा नहीं, मुझे उसकी ग्रेवी ग्रेवी पसंद है. सो लाल मांस नहीं खाते वहां का? नहीं, मैं आई डोंट ईट मटन, तो इसलिए नहीं. आई हैव एग एंड चिकन, सो उसमें अगर ग्रेवी में कुछ भी है तो ठीक है. अदरवाइज जो उसमें जो बाकी जो वेजिटेरियन में ही इतनी सारी, एक वो मूंग दाल की पराठे बनते हैं, वो इतने सॉफ्ट और इतने बढ़िया होते हैं. मूंग दाल पीस के उसके अंदर रोटियों के अंदर भर के बनता है एंड ऑल दैट. प्याज की कचौरी, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? आई नो, कचौड़ी तो खैर. यस, एंड जयपुर में वो दूध के लड्डू मिलते हैं जो तो आप शायद आधा किलो का डब्बा रखो, कब हम खा के खत्म कर देते पता ही नहीं चलता. इट्स एडिक्शन, यू नो. जैसे बड़े हल्के लगते हैं, बाद में पता चलता है. बाद में जब रात तक भूख ही नहीं लगती तो समझ में आता है. खाया था हमने, मैं तो ब्रेकफास्ट के बाद क्या खाया, कुछ नहीं खाया सिवाय लड्डू के. डन. It was very beautiful, but I think thank you so much, not for being here, but actually holding this dance form as the way you are, because बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत होती है एक पुराने डांस फॉर्म को करना, जिसमें आगे पे कमर्शियलाइजेशन भी कुछ नहीं है. It is just your own passion for that. Yeah. Because you know, I saw my guru Rajmata Sahib when she used to spend from her pocket to make costumes and everything. जो हम जब उस वक्त भी हम परफॉर्म करने के लिए जाते थे, she used to say सबसे पहले हमको पैसे लेने हैं, उतने पैसे लेने हैं जितने से हमारे म्यूजिशियंस का पेट, उनकी ब्रेड एंड बटर है, उनके लिए पैसा लेना है. बाकी फिर जो तुम लोग परफॉर्म करते हो, क्लास कंडक्ट कर रहे हो, दैट्स इट. उसके अलावा वो एक पैसा ऊपर से नहीं लेते थे. वो कहते थे कि नहीं, बाकी सब मैं खुद कर लूंगी. एंड ट्रैवल का जो होता था तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन. सो मैंने उनको इतने निस्वार्थ भाव से करते हुए काम देखा है ना, कि हिम्मत ही नहीं होती है कि हम इसको कॉमर्शलाइज कर सके. क्योंकि आज अगर कॉमर्शलाइज करने के लिए चले तो बहुत कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं. लेकिन when I did this song also, I didn't charge a single rupee to Sanjay because it was not Jyoti Tomar who was supposed to do this song. It was my guru's song. You didn't charge a penny? I didn't charge him because I said कि बस गाना सही तरीके से आना चाहिए. So I said कि Sanjay, I won't charge anything. So because see, बाबा आप किस मिट्टी के बनो, फिर मेरे को ये सवाल पूछना चाहिए. नहीं, मुझे आप ये बताओ, वो काम पहली बात तो मेरा नहीं है, वो मेरी गुरु का है. I cannot accept a single rupee on behalf of my guru. It is as simple as that. It was hard work. So what? It is beautiful. I did what she taught me. It was nothing created by me.
I am, and till date also, I'm teaching what she taught us. So how can I become an authority? हाँ मैं सिखा रही हूँ, चलो इतना नहीं, I can't, and I shouldn't. God So, bless you. This नहीं, is I think that amazing. is why she is. I feel her with me. I mean, मैं शिकायतें भी होती है, लोग आते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं, जब लोग काफी भावताव भी होता है। अच्छा, अगर इतना है तो फिर आप ये भी कर दीजिए और वो भी कर दीजिए, नहीं ऐसे होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आज वहीं पे अगर कोई बॉलीवुड की चीज होगी या कुछ और होगा, वेस्टर्न होगा, पीपल विल स्पेंड मनी, बट व्हेन इट कम्स टू फोक, दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी। इट्स बीन 38 years, आई एम सीइंग दिस पैटर्न स्टिल डेट। सो इट्स सैड, वेरी सैड। जबकि आप लोग खुद जानते हैं कि ये कहीं आड़ा टेढ़ा खर्चा नहीं होने वाला है। एक म्यूजिशियन है जिसके घर में जाएगा, बिल्कुल, सिर्फ लाइक परिवार चलेगा उससे। एग्जैक्टली। और वहीं पर अगर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनके अगर फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उनको अगर बुलाया, यू आर विलिंग टू पे देम फॉर जस्ट वन एंट्री के आकर के अपना चेहरा दिखा, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग द क्राउड। बट व्हाट, वेयर इज योर कंट्रीब्यूशन टू प्रिजर्व एंड प्रमोट आर्ट? कल्चर है, आर्ट है, हेरिटेज है, हम नहीं और कुछ कर सकते, तो यू कैन एटलीस्ट प्रोवाइड द काइंड ऑफ मनी द अकेडमी और द ग्रुप और द आर्टिस्ट इज आस्किंग। आप उनको दीजिए, उनका घर चलेगा, तो ये आर्ट बचा भी रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा तो खत्म है बात। जैसे हमारे अकेडमी में जो नगाड़ा बजाते हैं, वो 8वीं पीढ़ी है, वो जोधपुर हिजाइनस की रॉयल फैमिली के साथ में अटैच्ड हैं, वो वहीं पे नगाड़ा बजाते हैं। इफ यू विल गो टू मेहरानगढ़ फोर्ट, आपको मिलेंगे किले के दरवाजे पे, वो रहते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, उमर मोहम्मद नाम है उनका, और उनके साथ एक शहनाई वाले रहते हैं। तो उनके दोनों बेटे भी नगाड़ा भी बजाते हैं, गाते भी हैं। उनको अभी 12 तारीख को उनको अभी सम्मान मिलने वाला है, मारवाड़ रत्न का। अरे वाह, So it is so good that he is getting that kind of recognition, yeah. and which is very important. And lately तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को, जिनको पहले कभी किसी ने नहीं पूछा, किसी को पद्मश्री मिला है, किसी को कोई और अवार्ड मिला है, सो दैट इज हैपनिंग, तो खुशी होती है। बट एट द सेम टाइम फिर जहाँ अवार्ड तो मिल गया, लेकिन जहाँ पर किसी उनको बुला करके कुछ परफॉर्म करवाना है, मैम बजट नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? It is sad. Yeah, it's sad. It's sad. It is still beautiful what you're doing. Yes, we are trying our level best कि म्यूजिशियंस को, हमारा आज भी जब किसी को बजट भेजते हैं, सबसे पहले म्यूजिशियंस का खर्चा देखा जाता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी। कि हमारा, फॉर अस इट इज पैशन, फॉर देम इट इज ब्रेड एंड बटर, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। Yeah, so true, so true. So it's like, I think very overwhelming सारी conversation ना। I think हम लोग सब लोग, as Jyoti rightly said, कि बच्चों को स्कूल में कोई ना कोई आर्ट फॉर्म सीखना चाहिए। I think parents Correct, should take correct. that step. Correct, Parents should take that step and that lead, ताकि schools में ऐसे सब कुछ शुरू हो। Absolutely. जो उनको 38 years लगे हैं, बाकी डांस फॉर्म्स को इतना टाइम ना लगे। सही, ट्रू, वो अभी ट्रू, भी लड़ ट्रू। रहे हैं वैसे तो इस बात के लिए। Yeah. So I think we'll be back very soon, but एक गाना मैं भी गाना चाहूंगी साथ में, Please. जो हम साथ में गाएंगे। If you हाँ, know which कौन सा song? वाला? एक तो वो वाला है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, कौन कौन दिशा में लेके चला रे बटोया। हाँ, वो या मुझे फिर खाली उसके घूमर का साइलेंट गाना। आते हैं, मुझे खाली साइड, आई एम वेरी बैड विद वर्ड्स। वो पहला वाला गाना भी इसीलिए मैं रुक गई, क्योंकि आगे शब्द नहीं, याद वो नहीं है आया। लिखा हुआ। ओह मैं कौन सा वाला? कौन सा दिशा वाला? में? कौन जो दिशा वाला में बोलो, गाना है या फिर फेवरेट घूमर कौन ही सा गाना गाना है? है? कौन दिशा में, ये वाला कौन गा दिशा सकते हैं। में? हाँ, हाँ। गाते हैं ना ये वाला। शुरू करो, मैं पीछे आती मैं हूँ। सिंगर नहीं हूँ, पर नहीं, आपको पता है ना। गाओ, मैं पीछे पीछे लग जाऊंगी। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। रे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना लागे डगरिया, मन भर माए नैना लागे रे डगरिया। कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। कितने अच्छे गाने लिखते थे पहले, और कितनी अच्छा धुन भी बजती थी। आजकल तो वो गाना आता है और कब हम भूल जाते हैं, पता ही नहीं रहता है। याद एक्चुअली पुराने गाने ही हैं सबको। यस यस यस, या ट्रू, करेक्ट। यू Thank you सिंग so सो much. वेल अर्चना, क्यों ऐसे बोल रहे थे? अभी करो, फिर जल्दी मिलते हैं डांस करने के लिए भी। जाते जाते Yes. एक कोई डांस का घूमर का स्टेप सबको सिखा दो। सी घूमर का
सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट यू हैव टू कीप योर रिस्ट्स वेरी लूज, वेरी काम. Okay. जितना जैसे अगर हम यूं नाच रहे हैं तो पहली बात हम वी आर नॉट पपेट. लेटली बहुत सारे लोग ऐसे नाचते हैं, तो वी आर नॉट पपेट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग. Yeah. एंड आपकी भाषा जो है वो आपके हाथों से होगी. तो अगर आपको कुछ भी करना है, अगर मैं ये हाथ यूं घुमाऊंगी तो कितना स्टिफ लगता है, पर अगर हमने रूज किया और मैं यूं यूं घुमाऊंगी, ये यहाँ से ऐसे, बस. तो इट इज सो जेंटल. एंड ये ऐसे हम लेकर के गए. ये जैसे सपोज ऊपर कोई आपका बल्ब लगा हुआ है और आपको अंदर पहुंचना है, तो आपका हाथ कैसे घुमा, कितना जेंटली, क्योंकि ग्लास फ्रजाइल है तो कितने जेंटली हमारा हाथ घूमेगा, उतना ही जेंटली हमको ये हाथ, तो एकदम यूं और यूं. तो जैसे ये वाला मूवमेंट है ना, तो राजनाथ साहब यूज्ड टू से कि देखो हर जने के डांस में उनके रहन सहन की चीजें हैं. तो अगर हम यूं कर रहे हैं तो सोचो तुमने कर्टन खोले, अब कर्टन खोले तो सोचो वो टिश्यू का कर्टन है, तो कितने जेंटली आप खोलेंगे, यूं खोलेंगे, तब आप धड़ाक नहीं खोल. सो एकदम जेंटली आप अपने टिश्यू का कर्टन खोलिए, तो ये 1 2 3 4 एंड टक कर दिया कर्टन आपने. और जो मुट्ठी भी बनेगी टाइट नहीं, मुट्ठी बनेगी एज इफ बटरफ्लाई को आपने पकड़ा और यूं छोड़ दिया. सो ये नाइस. तो जेंटल एकदम. बस यही जेंटल, और इसी से आता है हमारा ग्रेस. ये यूं घुमाए, ये हमारा हाथ यूं गया, और ये बटरफ्लाई पकड़ के उड़ा दिया हमने. सिंपल. दिखने में सिंपल है, नहीं नहीं, सिंपल है. सिखा रहे हो. सो ब्यूटीफुल. बहुत मतलब एकदम ये स्वांतः सुखाए का डांस है. ऐसा डांस करो कि जब डांस करके रुको तो थकना नहीं है. पसीने हो गए, ये जूलिया मंजुलिका बन के नहीं निकलना है. जैसा खुश ठाट होके से निकलना हमने है. हाँ जो पहना वो हिलना भी नहीं चाहिए, तो उतना तसल्ली से नाचे. एक चीज कहना चाहूंगी, लगे रहो मुन्ना भाई. यस, करते रहना है, करते रहना है. वो दैट इज ऑल शी वांटेड अस टू डू. शी यूज्ड टू से ज्योति चलते रहना चाहिए, चलते रहना है, रुकना नहीं है. रुकना नहीं है. जब तक कर सकेंगे करते रहेंगे. यही है. Lots of love. Lots of love to you too.